Good morning, Jai Jinendra all. Thank you for joining today's session. We will start the session with Navkar Mantra. Sagar ji, we are sharing our screen for Navkar. Yeah. Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vachayanam Namo Loe Savasahunam Namo Loe Savasahunam Esu Panchanamukkaro Esu Panchanamukkaro Sauva Pavpanasano Sauva Pavpanasano Mangalanam cha Sauvesim Mangalanam cha Sauvesim Padhamam Havai Mangalam Padhamam Havai Mangalam जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग। अप्लाइड जैनिज्म के 35वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप उसमें से काफी लोग जानते रहेंगे, हम लोग हर महीने के पहले रविवार को ये सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे सेशंस का मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम कैसे सस्टेनेबल तरीके से जिए, हम कैसे माइंडफुल और कॉन्शियस लिविंग को अपनाएं। तो इसी उद्देश्य के साथ हम हर महीने एक सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं विद एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट एरिया। सो इसी श्रृंखला में आज के हमारे सेशन का टॉपिक है कैसे हम 6 आवर्स ऑफ सस्टेनेबल लिविंग को अपने जीवन में अपनाएं। और सेशन को एक बहुत ही कैची टाइटल दिया है सागर जी ने, आज के हमारे वक्ता ने, कि जीना इसी का नाम है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बिफोर वी गेट इनटू द सेशन। हमारे जीवन, हमारा एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जियो और जीने दो, यानी कि हम जिए और दूसरे जीवों को भी जीने दे, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, सारी जीव जंतुओं की जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी संसाधन बचाए रखे। सो ये हमारा प्रिंसिपल है। हम बार बार इस स्लोगन भी कहते रहते हैं, लेट लिव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो। बट जो आज की हमारी लाइफस्टाइल है वो इसके काफी विपरीत है। हमारा पर्यावरण का बहुत भारी स्तर पर नुकसान हो चुका है। देखा जाए तो कहीं पर बड़े पैमाने पर बाढ़ आ रही है, तो कहीं और सूखा पड़ रहा है, कहीं जंगलों में आग लग रही है, तो कहीं जमीन का वाटर लेवल गिर रहा है। बट जब पूरा जलवायु या क्लाइमेट इस टिपिंग पॉइंट पर है, बट फिर भी हम ऐसे काफी लोग सोचते हैं कि अभी तो वक्त है, काफी टाइम है। But frankly, there is no time. Time to start sustainable and conscious living is now. So, with this objective, we organize today's session with our expert speaker, Sagar ji. Sagar ji एक management graduate है, और he is also working in a corporate management for the last 24 years. In 2015, अक्टूबर 2015 उन्होंने मुंबई का रिवर मार्च ज्वाइन किया कि कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सके for the environment in a sustainable way. So with that intention, he joined, and that river march is now called Mumbai March, and he's actually part of the managing committee of Mumbai March. So that experience actually changed him, and I've known him a little bit, so I know, I mean, he has been consciously thinking and continuously thinking कि कैसे सस्टेनेबल लिविंग जिया जाए और कैसे दूसरों को भी प्रेरित किया जाए फॉर सस्टेनेबल लिविंग। सो विद दैट इंटेंशन ही स्टार्टेड आई लव नेचर करके एक सोशल मीडिया कैंपेन। वहां पे इन अक्टूबर एक्चुअली इन 2019 he started this campaign, and through this campaign every day 365 days of the year he gives one tip on sustainable living. It can be as simple as, I mean, avoiding plastic earbuds,
to getting into, the impact of data centers on environment. So covering wide range of topic across our personal, professional life and social life towards sustainable living. I have been following his steps. Following in the sense, yeah, on social media, I have been following personally, yes, to whatever extent. But very amazing work by Sagati. And see, most of us, we try to do something in terms of giving back to the environment, trying to do sustainable, but actually sustaining those initiatives on a continuous basis is what Sagati has done. So hats off to you, Sagati. It's our privilege to have you here, and we're really keen to hear you. So with this, without taking much time of everyone, I'll give the floor to you, Sagati. Thank you so much for accepting our invite, and it's all good. Thank you, Sangeeta ji, and सभी को जय जिनेंद्र, जय भारत. Thanks for a kind words, Sangeeta ji. आपने बहुत कुछ कहा. I hope I live up to those expectations. So quickly, just jumping into the session. ज़्यादातर हम हिंदी में बात करेंगे, but yes, कहीं शायद as a day-to-day life की वजह से इंग्लिश भी बीच में आ जाएगा. So हम सब लोग चाहते हैं कि हम हंसी खुशी से जिए, अच्छी जिंदगी जिए, आसान जिंदगी जिए, हेल्दी तंदुरुस्त जिंदगी जिए. लेकिन ज़्यादातर हम जब सोचते हैं तब हम हमारे बारे में ही सोचते हैं. और आज का हमारा जो मेन उद्देश्य है, सस्टेनेबल लिविंग बोलिए आप या जैनिज्म बोलिए, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, यहाँ पे एकवाद नहीं अनेकांतवाद होता है, कि जहाँ हमें सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोचना है, बट हमें सृष्टि के सभी जीवों के बारे में सोचना है और उनके अच्छे के लिए सोचना है. जीवन जीने के बहुत तरीके होते हैं, हर एक का अपना अपना तरीका, नजरिया, स्टाइल होता है. और आज जो हम शेयर करने वाले हैं, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, वो भी एक प्रकार है. जरूरी नहीं कि यही सही हो या यही गलत हो. हर एक का अपना अपना मंतव्य हो सकता है, बट ये भी एक तरीका है, ये भी एक विचारधारा है जो हम आज बात करेंगे इसके बारे में. अगर हम शुरू करें तो एक अगर मैं सवाल पूछूंगा आप सभी से कि आप लोगों में से कितने लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग की है, राइट? कितने लोगों ने सोचा है कि अच्छा अगले 5 साल 10 साल में मुझे किस तरह का फाइनेंस, किस तरह के पैसों की जरूरत होगी और उसके लिए सेविंग करके रखी है. आई एम श्योर हम में से आई थिंक सभी लोगों ने ये भी सोचा होगा कि मेरे बेटे के लिए मैं क्या छोड़ के जाऊं, मेरी बेटी के लिए मैं क्या छोड़ के जाऊं. एंड आई एम श्योर काफी सारे लोगों ने ये भी प्लानिंग किया होगा कि मेरे पोते परपोते के लिए भी क्या किया जाए, राइट? सब लोग सोचते हैं कि एक अच्छा फाइनेंशियल रोबस्ट सिस्टम हम लोग करके जाएं. हम जो भी पैसा कमाते हैं, ठीक है, क्या हम सब कुछ हमारे जीते जी खर्च करके जाएंगे? हम लोग नहीं करते हैं, राइट? उसमें से काफी सारा हम पैसा बचाते हैं. हम बचाते हैं पैसा क्योंकि कई आने वाले मुश्किल समय में वो काम आए. हम पैसा बचाते हैं क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को वो पैसा देना चाहते हैं. सो ये काफी सारी चीजें जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग ध्यान रखते हैं. अभी ये क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि बहुत जरूरी है, चाहे या ना चाहे जीने के लिए हमें पैसा चाहिए, राइट? हमें खाना खाना है, अच्छा रहना है, अच्छा मेडिकल हेल्थ चाहिए, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग हमें करनी जरूरी होती है. और सभी लोगों ने की है, किसी ने कम की होगी, किसी ने ज्यादा की होगी, किसी ने अच्छी की होगी, किसी ने उतनी अच्छी नहीं की होगी. बट ये हम करते हैं क्योंकि हम हमारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, हम हमारे बेटे बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, हम हमारे पोते परपोते का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सब लोग करते हैं. लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने एनवायरमेंट प्लानिंग की है, राइट, इंक्लूडिंग मी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों का जवाब ना होगा. कई सारे लोग पूछेंगे कि ये एनवायरमेंट प्लानिंग होता क्या है, कई सारे लोग पूछेंगे कि उससे फायदा क्या होता है, राइट? तो जिस तरह से हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग देखते हैं कि हमारे फ्यूचर में हमें या हमारे आने वाली पीढ़ी को तकलीफ ना हो, क्या हम एनवायरमेंट को उस तरह से देखते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि जल जो हम है उसको हम बचाएं ताकि हमें आने वाले सालों में तकलीफ ना हो, हमारी आने वाली पीढ़ी को तकलीफ ना हो? क्या हम वातावरण में जो जहरीले गैस हैं उनको रोकें, उनको नियंत्रित करें ताकि हमें फ्यूचर में सांस लेने में तकलीफ ना हो, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को सांस ना हो? क्या हम मिट्टी की क्वालिटी बनाए रखें ताकि जिस क्वालिटी का धान हम आज खा रहे हैं उसी क्वालिटी का, उससे अच्छी क्वालिटी का धान हम फ्यूचर में खाएं?
आप में से कई सारे लोग मेरे से बड़े हैं, आप सब लोग, हम सब लोग बात करते हैं कि मेरे जमाने में जब हम छोटे थे तभी जो गेहूं मिलते थे, तभी जो हमने आम खाए हैं, तभी जो हमने फल खाए, वो आज नहीं मिलते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं जिस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचा है, एनवायरमेंट प्लानिंग के बारे में नहीं सोचा है हमने। और क्यों नहीं सोचते हैं हम लोग? बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है, हमें पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। थैंकफुली पिछले कुछ सालों में इसके बारे में अवेयरनेस आई है, बट उसके पहले, एटलीस्ट अगर मैं मेरी बात करूं, तो 2015 के पहले तो मुझे भी इसके बारे में समझ नहीं थी। मेरी गलती है, मेरे आसपास वालों की गलती है कि हमने कभी इस बारे में जागरूकता फैलाई नहीं है, ना ही कभी हमने इंटरेस्ट लिया है। अच्छा, दूसरा, ये एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जो हम करेंगे लेकिन फायदा सब लेंगे। तो सब सोचते हैं मैं क्यों करूं, जब मेरा पैसा है तो वो मेरे लिए मैं बचा सकता हूँ, मैं मेरे बैंक पे रखूंगा, मेरे इसके लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं काफी सारे तरीके इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि उसका कोई और इस्तेमाल ना करे। लेकिन ये एनवायरनमेंट जो है, जब हम पेड़ लगाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो पेड़ से निकला वो ऑक्सीजन सिर्फ मैं ही लूंगा, सब लोग लेंगे। तो सब सोचते हैं मैं क्यों करूं, कोई और करेगा, मैं करूंगा किसी का फायदा और होगा, तो मैं क्यों करूं। वो एक सबसे बड़े लिमिटेशन सोच आ जाती है कि सब लोग सोचते हैं, ये तो किसी और की जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट करेगी, ये भगवान करेगी, ये सोसाइटी करेगी, मैं क्यों करूं। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम वही सोसाइटी का हिस्सा है, हम वही गवर्नमेंट का हिस्सा है, और हम वही लोग हैं जो इस चीज का हमें फायदा मिलेगा। सो ये एक सोचने वाली चीज है कि जिस तरह से हम लोग हमारे जिंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, क्या हम एनवायरमेंट प्लानिंग के लिए करते हैं या नहीं। और आने वाले कुछ मिनटों में हम इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे संगीता जी ने शुरुआत में बताया, बाढ़ आ रही है, भूचाल आ रहा है, गर्मी हद से ज्यादा पड़ रही है, सीजन्स चेंजेस हो रहे हैं, ये सब हिस्सा है क्लाइमेट चेंज का। इनफैक्ट जब ग्लोबली सर्वे किया जाता है, तो ये कुछ डेटा है 3-4 साल पुराना है, जब एक काफी इन्फ्लुएंशियल, काफी जानी मानी रिसर्च एजेंसी ने सर्वे किया गया और लोगों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत, थ्रेट जो है आज ग्लोबल लेवल पे, आपके देश को या पूरे विश्व को किस चीज की सबसे ज्यादा थ्रेट है। और 2018 में 2/3 लोगों ने, यानी 67% लोगों ने बोला कि उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज का, सबसे ज्यादा उनको टेंशन है क्लाइमेट चेंज का। और आप देख सकते हैं कि 2013 से 18 के बीच में ये मानने वाले लोग बड़े हैं। ISI है, साइबर अटैक्स है, टेररिस्ट अटैक्स है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है, या इकोनॉमी प्रॉब्लम्स है, लोगों को उससे ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता लोगों को यह ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की और उसके होने वाले असर की। लेकिन क्या हम इसके बारे में एक्शन ले रहे हैं? बातें तो बहुत करते हैं हम लोग, क्या बट हम उसको आचरण में ला रहे हैं या नहीं, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। इनफैक्ट जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे, आप सब लोगों ने सुना होगा SDG, सस्टेनेबल SDGs एक्सेट्रा, उसमें 17 क्लियर गोल्स डिफाइन किए गए हैं। और वो 17 में से अगर आप देखेंगे, मैंने टिक किया हुआ है, 8 गोल जो हैं वो पर्यावरण के रिलेटेड है। यानी आप सोच सकते हैं कि 17 में से 8 अगर पर्यावरण के रिलेटेड है तो वो कितना जरूरी है, कितना अहम मायने रखता है उस चीज के बारे में। और इस चीज का सोल्यूशन क्या है? अगर ये सब प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। अगर सोल्यूशन नहीं है तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जहां तक मेरा मंतव्य है, जहां तक मैंने लोगों से सुना, सीखा, एक्सेट्रा किया, सो एक अगर वर्ड में, एक सिंपल सोल्यूशन में करना हो तो सस्टेनेबल लिविंग इसका एक सोल्यूशन। क्या यही एक सोल्यूशन? नहीं, शायद और भी कोई सोल्यूशन होंगे, बट ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है जो, जहां तक मैंने ध्यान दिया है, ये एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है। अगर हम लोग ये सस्टेनेबल सोल्यूशंस को जीना करें, इसको हम हमारी जिंदगी में फॉलो करना करें, तो काफी हद तक जो ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। 5 साल पहले जब मुझे ये कॉन्सेप्ट से थोड़ा परिचय हुआ, उसके बारे में जब मैं ज्यादा जानने लगा, तभी जब जितना जितना डीप जाते गया मुझे, तभी रियलाइज हुआ कि अरे इसके कितने सारे प्रिंसिपल है, या तो ज्यादातर प्रिंसिपल है वो तो हमारे जैनिज्म से ही जुड़े हुए हैं।
तो अगर हम इसको रिलीजियस एंगल से देखें, तो अगर हम हमारा जैनिज्म जो है उसको अगर पूरी तरह से फॉलो करते हैं, उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, उसके जो भी हमारे सूत्रों में लिखा हुआ है, उसको जीवन में हम आचरण में लाते हैं, तो ये एक तरह से सस्टेनेबल लिविंग ही है। अभी कोई इसे धार्मिक मंतव्य दे सकता है, कोई इसे मॉडर्न साइंस कह सकता है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ जैनिज्म ही इस चीजों के बारे में बात करता है। काफी सारे दूसरे धर्म भी इस चीज के बारे में बात करते हैं। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है दूसरे धर्मों के बारे में, लेकिन जितना जो थोड़ा बहुत जानता हूँ, हर एक धर्म जो है वो कहीं ना कहीं इस चीजों के बारे में जरूर बताता है। कोई ज्यादा बताता है, कोई कम बताता है, लेकिन जरूर ही इन चीजों में कैप्चर किया गया है। हम लोग सब लोग मॉडर्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कई बार हम लोगों को थोड़ा रिलीजियस सेंटिमेंट से अटैचमेंट नहीं होता है। हमें लॉजिक ज्यादा काम करता है। हम बोलते हैं कि ठीक है, इसका आप मुझे लॉजिक बताइए, इसका आप मुझे क्यों, वाई वो बताइए, हाउ बताइए। तो वो चीज भी अगर हम देखें तो वो एग्जैक्टली साइंस में कहा जाता है, और हम उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो एक साइंस और रिलीजियन का ये एक बहुत ही बेहतर सुमेल है, बेहतर कॉम्बिनेशन है सस्टेनेबल लिविंग, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सवाल होता है कि ये सस्टेनेबल लिविंग होता क्या है, ये किस चीज का नाम है, इसमें एग्जैक्टली करते क्या है। अगर हम डिक्शनरी डेफिनेशन देखें या तो वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन देखें, तो सस्टेनेबल लिविंग का मतलब ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है, ये एक जीने का प्रकार है जो हमारी आज कुछ जरूरियातों को पूरा करता है, उसी साथ में ये भी ध्यान रखता है कि आने वाली जनरेशन या तो हमारे फ्यूचर की जो जरूरियात हो उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। हम उसी तरह की जिंदगी आज जिए और उसी तरह की जिंदगी फ्यूचर में भी जिए, ताकि उसमें कोई बदलाव ना हो, या तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है या तो हमारी फ्यूचर जो जीने का तरीका है वो आज से अच्छा हो। अभी ये अच्छा का तरीका ये है कि इसमें सिर्फ भौतिक चीजों को ध्यान नहीं दिया गया है, राइट। ये जरूरी नहीं है कि अच्छा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छे रहने को हो, अच्छा घूमना फिरना हो, नहीं, ये वहां भौतिक चीजों को ध्यान नहीं देता है। ये सभी चीजों को ध्यान देता है कि जिसमें आपकी तंदुरुस्ती, आपका खाना पीना, आपका आबोहवा, आपका वायु, सब चीजों पे ये ध्यान देता है। तो इन शॉर्ट बताया गया है कि ये एक इस तरह का जीने का तरीका है कि आप आज की अच्छी जिंदगी को फ्यूचर में भी जिए विदाउट किसी कॉम्प्रोमाइज किए हुए। इट्स एन अटेम्प्ट, एक ये एक प्रयास है कि हमारा इंडिविजुअल का या तो हमारी कम्युनिटी का, हमारे ग्रुप का जो नेचुरल रिसोर्सेज और पर्सनल रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज भगवान ने दिए हैं, जो हम पंच महाभूत कहते हैं, तो जितने भी जो प्रकार है भगवान ने दिए हैं, उस चीजों का हम कम से कम इस्तेमाल करके हमारी जिंदगी हंसी खुशी से जिए। जो लोग सस्टेनेबल लिविंग फॉलो करते हैं लाइफ में, और जरूरी नहीं कि 100% सही हो, राइट, थोड़ा बहुत भी हो, जो भी लोग ये फॉलो करते हैं उनका एक प्रयास रहता है कि वो उनकी कार्बन फुटप्रिंट कम करें। और इसके बारे में हम बताएंगे कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है। ज्यादातर लोग जानते हैं ये क्या है, बट इन केस अगर आप नहीं जानते तो मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमारा जो जीने का तरीका है उसमें कुछ बदलाव लाते हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। फिर चाहे वो चेंजेस या बदलाव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हो, एक जगह से दूसरे जगह हम कैसे अच्छे तरह से जाए, एनर्जी कंजम्पशन के बारे में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो और किसी प्रकार की एनर्जी हो, हमारे खान पान के बारे में हो, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हो, जल वायु वगैरह के लिए। तो ये हर एक चीजों को ये लोग ध्यान में रखते हैं, और इसका एक ही ये लोग का ध्येय रहता है कि इन सब चीजों का हम जितना कम से कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है, उतना हम ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल लिविंग के लिए जा सकते हैं, उतना ही हम ज्यादा से ज्यादा हमारी आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। यही मैं अगर ड्रॉ करूंगा, जैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे थे शुरुआत में, हम सब लोग जस्ट बिकॉज हमारे पास पैसा है, हम लोग वो उड़ाते नहीं है, हम लोग उसको बहुत ध्यान से खर्च करते हैं, राइट। जहां 1 रुपए से काम हो सकता है वहां हम 1.5 रुपया खर्चा नहीं करते हैं। जहां हम बचा सकते हैं, जहां सेल लगा, जहां कुछ मुफ्त में मिला, हम लोग वो लेते हैं, राइट।
तो उसी तरह से हमें ध्यान रखना है इन सब नेचुरल रिसोर्सेज का कि हम किस तरह से कम उसका इस्तेमाल कर सके। ना कई सारे लोग जो सस्टेनेबल लिविंग के बारे में बात करते हैं या तो जर्नी में है, वो मिथ होते हैं, कुछ भ्रम होते हैं उनके, और वो कुछ मैं मिथ ब्रस्ट करना चाहूंगा। एक तो लोग सोचते हैं कि सस्टेनेबल लिविंग यानी बोरिंग लाइफ, कि आप सन्यासी बन जाओ, आप साधु बन जाओ, आप दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लो, आप टीवी देखना छोड़ दो, आप मौज मजा करना छोड़ दो। ये एक सबसे बड़ा मिथ है। इनफैक्ट मैं क्या कहूंगा कि जिस तरह से हम लोग सस्टेनेबल लिविंग की ओर ज्यादा जाते हैं, हमारी जिंदगी और ज्यादा से ज्यादा बेहतर, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। एक सिंपल उदाहरण मैं दूंगा इसका। हम सब लोग जब छुट्टियां मनाते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, राइट? ज्यादातर लोग जो हैं और ज्यादातर बार जो है हम लोग छुट्टियां मनाने हिल स्टेशन जाते हैं, दरिया किनारे जाते हैं, बीच डेस्टिनेशन जाते हैं। आप देख लीजिए, हम लोग जाते हैं कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने जाते हैं। सो अगर आप लोग देखें, अगर आपने पिछले 10-15 सालों में जितनी भी छुट्टियां मनाई हैं, ज्यादा छुट्टियां अगर आप देखेंगे, आप किसी हिल स्टेशन पे गए होंगे, आप किसी बीच पे गए होंगे, आप किसी हिस्टोरिकल लोकेशंस पे गए होंगे। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें आपको नेचर की ओर लेके जाती हैं, राइट? आप नेचर के पास गए हैं छुट्टियों में, क्यों? क्योंकि आपको वहां सुकून महसूस होता है, वहां आपको अच्छा लगता है, आप फ्रेश होके आते हैं, आप रिचार्ज होके जाते हैं। लोनावला, खंडाला जाते हैं बारिशों में, आप वाटरफॉल्स पे जाते हैं, वहां नहाते हैं, नदियों में जाते हैं, वहां नहाते हैं। तो क्या ये बोरिंग है? नहीं, ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये एक सबसे पहला मिथ है कि लाइफ बोरिंग नहीं है। अच्छा, खाना भी आपको बहुत अच्छी तरह से खाने मिलता है, आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने मिलते हैं, आपको हेल्दी चीजें खाने मिलते हैं। अच्छा, ये खाने के बाद आप बीमार नहीं पड़ते, आपको हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड नहीं करता है, आपको कड़वी दवाइयां नहीं खानी पड़ती हैं, आपको बेड पे नहीं लेटना पड़ता है, राइट? तो ये सब चीजें तो अच्छी हैं। तो ये बिल्कुल भी बोरिंग लाइफ नहीं है, इनफैक्ट ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ है। अच्छा, दूसरा, लोग सोचते हैं ये एक्सपेंसिव है। शायद कुछ चीजें एक्सपेंसिव हो सकती हैं, लेकिन नेट नेट ये एक्सपेंसिव नहीं है। यस, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में स्पेशली अगर हम खाने पीने की चीजों का बात करें, तो जो डाइट्स होता है, जो सस्टेनेबल लिविंग का डाइट होता है, जो वीगन डाइट होता है, यस, वो थोड़ा महंगा है, राइट? पर किलो, पर ग्राम प्रोटीन, पर किलो कैलोरी अगर आप देखें तो यस, ये खाना थोड़ा महंगा है, लेकिन इसमें आपको काफी सस्ते ऑप्शंस भी मिलते हैं, राइट? इसमें जितना आप नेचुरल और सादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे, जरूरी नहीं है कि इसमें हमें बहुत एक्सपेंसिव फैंसी वेजिटेबल्स वगैरह लेने हैं, बट वो भी हमें सस्ता पड़ता है। अच्छा, जैसे आप सस्टेनेबल लिविंग जिएंगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा काफी कम हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी कम हो जाएगा, आपके बाकी सारे खर्चे जो है, फैशन वगैरह के खर्चे, वो काफी सारे कम हो जाएंगे। तो नेट नेट अगर आप देखेंगे तो आपका महीने का जो बजट है वो कम हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, लोग सोचते हैं कि अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यस, शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट? हम जो जिस तरह का डाइट फॉलो करना चाहते हैं या हम जिस तरह का ट्रांसपोर्टेशन फॉलो करना चाहते हैं, यस, उसमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी, उसमें थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, उसमें थोड़ी बहुत मेहनत लेनी पड़ेगी। लेकिन एक बार जब आप उससे यूज टू हो जाएंगे, एक बार जब आप सिस्टम में बैठ जाएंगे, तो आप उसको इंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। यस, किसी भी तरह का हम ट्रांजिशन करते हैं, किसी भी चीज में हम बदलाव करते हैं, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, उसको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो एक बार अगर हम वो सीख लेंगे तो ये बहुत ही आसान है। सो ये जो चीजें हैं वो इजीली फॉलो कर सकते हैं, और इसीलिए हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया, आई लव नेचर का। ये इनिशिएटिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों से एक्टिवली इंगेज करें, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो कम्युनिटीज हो, उनको सस्टेनेबल लिविंग के बारे में बताएं और उन्हें इंस्पायर करें कि आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाके सस्टेनेबल लिविंग की ओर जाइए, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी का भी फ्यूचर सिक्योर रहे। अच्छा, ये जो हमारा इनिशिएटिव है, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बिलीव्स पे हमने इसको बिल्ड किया है। तो क्या वो बिलीफ्स है? हमारी पहली बिलीफ है कि एज अ कंज्यूमर, एज अ उपभोक्ता,
have a power to change the world. Just being careful in what we buy. लोग कहते हैं कंज्यूमर किंग है, राइट? कंज्यूमर उपभोक्ता राजा है, और ये बिल्कुल सही है। आप और मैं एज अ कंज्यूमर, हमारे पास ये पावर है कि हम ये दुनिया में बदलाव लेके आ सकते हैं। सिंपल एग्जांपल दूंगा, कई लोग कहते हैं अरे यार ये तो प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी है, लोग बनाते ही क्यों है, अगर लोग बनाएंगे नहीं तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल गलत। बिकॉज हम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज हम उन चीजों का डिमांड करते हैं, लोग उसे बनाते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोड्यूसर वही चीजें बनाएगा जो मार्केट में बिकेगी। अगर हम उसको कंज्यूम करना बंद कर दें, अगर हम उसको उपभोग करना बंद कर दें, तो वो लोग बनाना बंद कर देंगे। अगर हम उसकी जगह डिमांड करें कि मुझे कपड़े की थैली चाहिए, मुझे वीगन प्रोडक्ट चाहिए, लोग वो बनाना करेंगे। आप देखिए पिछले 5-6 सालों में, पिछले 10 सालों में किस तरह से कपड़े की थैली का अवेलेबिलिटी बढ़ा है, किस तरह से वीगन प्रोडक्ट्स का अवेलेबिलिटी बढ़ा है, किस तरह ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बढ़े हैं। क्या वो इजीली आसान अवेलेबल है? नहीं, अभी भी नहीं है। लेकिन आज के 10 साल पहले जितना मिलता था उससे तो डेफिनेटली ज्यादा मिलता है, राइट? सिंपल एग्जांपल देखिए, आज आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी देश में जाइए, वहां आपको जैन खाना मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैन लोग ट्रैवल करते हैं, जैन लोग वो फूड की डिमांड करते हैं, और लोगों को पता है कि अगर हमने जैन खाना सर्व किया तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। क्या हम लोगों ने जब मुश्किल होती थी हमने जैन खाना छोड़ दिया? नहीं, हमने जैन खाना छोड़ना नहीं छोड़ा, नहीं है। हम अड़े रहे, कुछ नहीं था तो हम हमारे साथ खाना लेके जाते थे। जब हम फॉरेन ट्रैवल करते थे, इंक्लूडिंग मी, जब मेरे अर्ली डेज में मैं फॉरेन ट्रैवल करता था काम की वजह से, तो मैं हफ्ते भर का राशन, हफ्ते भर का खाना मेरा साथ में लेके जाता था। कंपनियों को रियलाइज हुआ, करे यार ये जैन तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, अगर उसको हमने खाना नहीं दिया तो हमारा नुकसान है। तो आज दुनिया के हर कोने में खाना मिलने लगा। क्यों? क्योंकि हमने हमारे प्रिंसिपल्स नहीं छोड़े, हमने हमारे प्रिंसिपल्स पे अड़े रहे और डिमांड की। तो एज अ कंज्यूमर हमारे पास पावर है कि हम ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है, हमें परफेक्शन नहीं चाहिए। हमें 10 लोग ऐसे नहीं चाहिए जो एकदम परफेक्ट जीरो वेस्ट जिंदगी जीते हो, या परफेक्ट जैनिज्म फॉलो करते हो, या परफेक्ट सस्टेनेबल लिविंग फॉलो कर सकते हैं। हमें परफेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूरा नहीं होता है थोड़ा कीजिए, अगर आपसे 10 चीजें नहीं होती है 2 चीजें कीजिए। लेकिन हमें चाहिए कि पूरी दुनिया, लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोग जो है, हर अपने जिंदगी में थोड़ा थोड़ा इन चीजों का इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा इस चीजों को फॉलो करें। तो 10 लोग दुनिया नहीं बदल सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोग थोड़ा थोड़ा करके ये दुनिया जरूर बदल सकते हैं। अच्छा, हमारा अप्रोच, हमारा तरीका किस तरह का है? 2 तरीका हमारा। एक तो जैसे गांधी जी ने कहा है कि खुद वो बदलाव बनो जो दुनिया में देखना चाहते हो, राइट? हम सब चाहते हैं दुनिया अच्छी हो, दुनिया में ये हो, दुनिया में वो हो, लेकिन उसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। जैसे लोग कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप जो दुनिया में बदलाव देखना चाहते हो वही बदलाव आप अपने आप में लाओ। सो पहले अपने आप से शुरुआत करो बदलाव लाने की, फिर आप दुनिया को बदलो। आपको देख के दुनिया जरूर बदलेगी, लेकिन शुरुआत अपने आप से करो। दूसरा कहना है, कोइंसिडेंटली ये भी हमारे गांधी जी ने बताया है कि इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड, राइट? हमें रेवोल्यूशन नहीं लाना है, हमें इवोल्यूशन लाना है। हमें एक ही दिन में दुनिया नहीं बदलनी है, हमें आने वाले कुछ दिनों, महीनों, सालों में दुनिया बदलनी है। क्योंकि जब रेवोल्यूशन होता है उसमें बहुत रेजिस्टेंस होता है, राइट? इवोल्यूशन जो होता है वो आसान तरीके से होता है। हम एज ए ह्यूमन बीइंग भी इवॉल्व हुए हैं, राइट? हम भी स्लोली एंड ग्रेजुअली अच्छी अच्छी चीजें सीखे हैं। तो इवोल्यूशन हमें करना है। कई बार लोग स्पेशली बातें करते हैं जो एकदम स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स रहते हैं, उन्हें लगता है कि सबको एकदम पूरी तरह से चुस्त तरीके से चीजें फॉलो करनी है, और लोग क्यों नहीं करते, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो लोग, कई बार डिबेट्स आर्ग्यूमेंट में हो जाते हैं। जरूरी नहीं है, हमें एक दिन में दुनिया नहीं बदलनी है, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, और हमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, हमें थोड़ा थोड़ा नच करना है। एंड बिलीव मी, विश्वास रखिए कि एक दिन वो बदलाव जरूर आएगा। एक दिन में हमें शायद वो चेंज देखने ना मिले, कल और आज में हम देखें तो वो शायद चेंज ना मिले, पिछले महीने और अगले महीने में देखें तो शायद वो चेंज ना दिखे, पिछले साल और अगले साल में हम देखें कि वो चेंज ना दिखेगा,
लेकिन पिछला दशक और आने वाले दशके में हम देखेंगे वो चेंज हमें जरूर दिखेगा। जितना लंबे पीरियड में हम देखेंगे वो चेंज हमें जरूर दिखेगा। तो इसके लिए परेशान मत होइए कि अगर आप सब चीजें एक दिन नहीं कर पा रहे हैं, परेशान मत होइए कि अगर सब आपके जो आस पड़ोस वाले लोग हैं वो एक दिन में नहीं चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सबको समय दीजिए, हम लोग भी ये चीजें सीखे हैं तो लोगों को सीखने का समय दीजिए। अच्छा, दो मेन एलिमेंट होते हैं सस्टेनेबल लिविंग के। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, जल, वायु, अग्नि, पर्वत, जितने भी हैं, खनिज हैं, जो भी है। और दूसरा होता है कार्बन फुटप्रिंट, और इसमें एक जल के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, वाटर फुटप्रिंट के भी बारे में हम बात करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज तो इजी है हमें समझना, थोड़ा समय में बिताऊंगा कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। अच्छा, ये कार्बन फुटप्रिंट ये है क्या? ये है कि अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जब हम वातावरण में रिलीज करते हैं, ओके, और ये रिलीज होता है कि कई सारी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से, जितनी भी एक्टिविटीज में एनर्जी, घर्षण रिलीज होता है, उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अच्छा, ये ग्रीन हाउस गैसेस काफी होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोक्सस ऑक्साइड, डाइऑक्साइड हो गया। सो काफी सारे गैसेस इसमें होते हैं। लेकिन इसको CO2 क्यों कहा जाता है लार्जली? क्योंकि अब जब भी हम कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात करते हैं, हम इसको CO2 में कैलकुलेट करते हैं, राइट। हम बोलते हैं 10 टन CO2 इक्विवेलेंट। तो कभी भी आप देखेंगे तो CO2e लिखा होगा, वो E होता है यानी इक्विवेलेंट। वो इसलिए होता है कि अगर हम हर एक गैसेस के बारे में अलग अलग बात करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाता है। तो लोग क्या कहते हैं, लोग इसको कार्बन 2 में इक्विवेलेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे लोग, एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूंगा तो मीथेन गैस होते हैं, जो एक सबसे जहरीली गैस होती है, कि वे जो हमारे जितने भी मल मूत्र होता है ज्यादातर वहां से रिलीज होता है। और गैस जब हम जमीन से गैसेस निकालते हैं तो उसमें भी मीथेन निकलता है। अभी वो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा जहरीला है। तो लेकिन भले उसकी मात्रा काफी कम हो, लेकिन उसका जहरीलापन काफी ज्यादा है। तो इसके लिए लोग उसको कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करते हैं। तो अगर 1 यूनिट ऑफ मीथेन होता है, उसका 25 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, तो उसको वो 25 गिना जाता है। तो इस तरह से उसको CO2 इक्विवेलेंट में गिना जाता है और वो कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है, ताकि हमें आसानी हो गिनने में। मेजर लाइफस्टाइल एस्पेक्ट हो जो कि कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, हम अगर हमारी मेजर लाइफस्टाइल देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 25% ग्लोबली जो कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के लिए। ओके, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसानकारक है। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, एक चीज से सगज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। थर्ड है फूड, हम जो खाते पीते हैं 14%। और नेक्स्ट है हमारा फैशन, क्लोथिंग एक्सेट्रा। तो इन चीजों को अगर हम मोटा मोटी ये 4 चीजों के बारे में हम बात करें तो 65% तक का जो कार्बन फुटप्रिंट है, और शायद पिछले 1-2 साल में ये बढ़ा ही है, वो इन 4 चीजों के बारे में, 4 चीजों की वजह से होता है। अच्छा, अभी आप बोलेंगे मुझे थोड़ी तो जानकारी हो गई कार्बन फुटप्रिंट क्या है, लेकिन मुझे ये पता भी तो होना चाहिए कि मैं कितना कार्बन फुटप्रिंट कंज्यूम करता हूँ, राइट। अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं रिड्यूस करूँ कैसे करूंगा? जैसे हम बोलते हैं कि आपका बीपी हाई है, अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा बीपी कितना हाई है तो वो मैं कंट्रोल कैसे करूंगा? 2 चीजें आपको ये सिखाने में मदद कर सकती हैं। एक तो एक बुक है, एंड ये मेरा पर्सनल व्यू है, एक बुक है हाउ बैड आर बनाना, जिसमें काफी अच्छी तरह से लिखा गया है कि कार्बन फुटप्रिंट किस तरह से कैलकुलेट करता है, हर चीजों का कितना कार्बन फुटप्रिंट होता है। अगर आप गाड़ी में, कार में 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपका फुटप्रिंट क्या है, बस में जाते हैं तो क्या है, अगर आप एक पपैया खाते हैं, एक सफरजन खाते हैं तो उसका फुटप्रिंट क्या है, अगर आप 1 किलो चीज परचेज करते हैं उसका फुटप्रिंट क्या है। तो काफी सारी छोटी छोटी चीजों को इस बुक में बताया गया है। दूसरा है onlyplanet.in, ये एक वेबसाइट है इंडिया में जहां पे आप क्लिक करके आपका अपना कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके क्रिएटर ने काफी सिंपल तरीके से इसमें कैलकुलेटर्स डाले हैं। आपको शायद 15 से 20 मिनट लगेंगे, आपको वो आपकी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ सिंपल सवाल पूछेंगे, और उस सवाल का जवाब जब आप अपलोड करेंगे
तो आपको पता चलेगा आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है। मैं ये दो चीजें प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ओके, और अगर मैं ओनली प्लेनेट के बारे में बात करूं तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। आप जब जाएंगे तो इस तरह के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखेंगे जहां पे आपको वो पूछेंगे आपकी बेसिक लाइफस्टाइल्स के बारे में वगैरह, फूड वाटर कंजम्पशन के बारे में। और एट द एंड ऑफ द डे लास्ट में जो राइट बॉटम साइड पे जो आप एक काला चिन्ह देख रहे हैं, वो आपको शेडो दिया जाएगा। जितना बड़ा आपका शेडो रहेगा उतना बड़ा आपका कार्बन फुटप्रिंट होगा, जो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। एक ब्रॉडली अगर आपको बताया जाए तो इंडिया में हमारा एवरेज कार्बन फुटप्रिंट जो है वो 1.8 टन यानी 1800 किलोग्राम हमारा कार्बन फुटप्रिंट है एवरेज इंडियंस का, जो दुनिया में काफी कम है। बट जो कि हमारा पॉपुलेशन काफी बड़ा है, हम सबसे पॉपुलेस्ट कंट्री हैं ग्लोबली, हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो टॉप 3 में आता है, राइट। लेकिन पर पर्सन कार्बन फुटप्रिंट हमारा कम है। आप जब कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे अगर आपका 1800 किलोग्राम के ज्यादा है, यानी आप धरती को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको उसको कम करना है। अभी आप बोलेंगे ठीक है, ये तो आपने बता दिया, हमें सस्टेनेबल लिविंग के बारे में बताया, हमें कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बताया, कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं ये करूं कैसे, मुझे डे टू डे जिंदगी में करना क्या है, राइट। अगर ज्ञान है मेरे पास लेकिन उसका आचरण नहीं है, वो अगर मैं जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं तो उसका फायदा क्या। तो उसके लिए मैं क्या करूं। सिंपल 6R आप फॉलो कीजिए। सिक्स आर है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रेप्लेनिश और रेज योर वॉइस। हर एक पे मैं स्लाइटली टच करूंगा। सबसे पहला तो है रिफ्यूज। कुछ भी चीज है, अभी मैं आपको, जब हम ये 6 आवर्स के बारे में बात करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब हम बात करते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल के बारे में भी साथ में सोचना शुरू कीजिए कि आप किस तरह से जीते हैं और किस तरह से आप ये जो आर को है आपकी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो है आर रिफ्यूज, यानी मना कीजिए। कोई भी चीजें जो है, यस नीता जी, रीथिंक इज अनदर आर जो हम ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर दैट इनपुट। कितनी भी रिफ्यूज जो है, तो सबसे पहले तो आप ये सवाल पूछिए, कुछ भी चीज आप खरीदते हैं, कुछ भी चीज आप कंज्यूम करते हैं, कुछ भी चीज आप करते हैं, पहले तो सोचिए क्या ये करना जरूरी है, क्या ये खरीदना जरूरी है, क्या मुझे ये सच में चाहिए, क्या मैं इसके बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता, राइट। काफी सारे लोग हम कुछ एग्जांपल्स देने जैसे मैंने दिया, हम लोग बाहर गए, मार्केट में घूमने गए या तो गए, सडनली भूख लगी, वहां पे हमने देखा चिप्स का पैकेट है, खरीद लिया। क्या हम सोचते हैं 2 बार पहले कि अगर क्या मैं ये 1 घंटे अगर नहीं खाऊंगा, 1 घंटे बाद अगर मैं घर पहुंच के खाऊंगा तो क्या मैं चला सकता हूँ। मार्केट में गया, मैं सोचा रहे आज आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, आज घर में शादी है, नई जोड़ी कपड़े लेते हैं, क्या मेरी पहली वाली ड्रेस जो है वो काम नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं अरे यही साड़ी पहन के, अगर यही शर्ट पहन के मैं वापस ये हफ्ते भी शादी में गया तो लोग बोलेंगे अरे पिछले महीने भी आपने ये शर्ट पहनी थी, इसमें क्या बुरी बात है, राइट। अगर वो शर्ट अच्छी है, पहनने लायक है, प्रसंग अनुरूप है, तो क्यों नहीं पहन सकता मैं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग जूते खरीदते हैं, राइट। ब्लैक ड्रेस के लिए ब्लैक जूता, व्हाइट ड्रेस के लिए व्हाइट जूता, शादी के लिए अलग जूता, ऑफिस के लिए अलग जूता, स्पोर्ट्स के लिए अलग जूता, मॉर्निंग वॉक के लिए अलग जूता। क्यों चाहिए इतने सारे चीजें हमें, क्या हम उसको कम कर सकते हैं। अच्छा, कई बार हम मार्केट में जाते हैं, भले ही पास में हो, हमने मोटरसाइकिल निकाल ली, कार निकाल ली, क्या उसके बजाय मैं चल के या साइकिल पे नहीं जा सकता। अच्छा, दूसरी चीजें इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा कारण 25% कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी से। हम लोग घर में बिना सोचे समझे लाइट के बटन जला देते हैं, पंखे जला देते हैं, पूरे घर में 4, 5, 6 लाइटें जलती हैं, क्या हम वो कम कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, अभी हम लोग ये सेशन में बैठे हैं, राइट। आपके आसपास देखिए आपकी कितनी लाइट जल रही है, आपके कितने पंखे जल रहे हैं। सोचिए क्या आपको रियली चाहिए। जब हम सेमिनार में बैठे हैं, दिन का अच्छा खासा उजाला है, राइट, हमें लाइट क्यों चाहिए। खिड़कियां खोल के क्या हम मुक्त वातावरण में पंखे के बिना नहीं बैठ सकते हैं, राइट। अगर आपको ये चीज में थोड़ा भी सही लगता हो
तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पीछे लाइट जल रही है तो उसको बंद कर दीजिए, नहीं चाहिए तो। अगर आपके पीछे पंखा चल रहा है उसको बंद कर दीजिए। अगर आप एसी में बैठे हैं, एसी बंद कर दीजिए। हाँ, 1-2 मिनट के लिए शायद थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, बट हमारे शरीर को उस तरह की आदत करनी है। प्लास्टिक यूज करना बंद कर दीजिए। हम सब लोग बात करते हैं कि प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या वो हम आचरण में लाते हैं? राइट। बहुत कन्वीनियंटली हम लोग बाहर जाते हैं और अरे प्यास लगी है, एक बोतल पानी ले ली। अरे मैं घर से कपड़े की थैली लेना भूल गया, सब्जी लेनी है, ठीक है चलो आप प्लास्टिक की थैली दे दो मुझे। राइट। कुछ प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज किए, शादी ऑर्गेनाइज की, अरे हमें तो उसमें प्लास्टिक की बोतल रखनी पड़ेगी, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। राइट। इन सब चीजों को हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। अपना पानी कैरी कीजिए। आज से 20-25 साल जब हम ट्रैवलिंग करते थे, हम खुद 5 लीटर 6 लीटर पानी कैरी करते थे, कुंजा लेके जाते थे, वाटर जग लेके जाते थे, कपड़े की थैली लेके जाते थे। अगर तभी हम कर सकते हैं तो आज क्यों नहीं कर सकते हम लोग? राइट। स्कूल कॉलेजेस में जाते थे, हमारा खुद का टिफिन बॉक्स लेके जाते थे, क्यों हमें बाहर का खाना खाना है? तो सबसे पहले आर, रिफ्यूज सोचिए। अगर इस आर पे आपने काबू पा लिया, सोच लीजिए आपका 50% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा ना। ये भी सही है कि सब चीजों को हम मना नहीं कर सकते, हम संसार में रहते हैं, हम जिंदा हैं, हमें कुछ ना कुछ चीजों का इस्तेमाल करना ही है। लेकिन जितना ज्यादा हम रिफ्यूज करेंगे, जितना कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कॉन्शियसली इस्तेमाल करेंगे, उतनी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण आर है। इस आर पे अगर आपने काबू पा लिया, आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, बाकी 50% को हम कैसे सॉल्व करेंगे? टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे। रिफ्यूज नहीं होता है तो रिड्यूस कीजिए। राइट। अगर आप किसी चीज को मना नहीं कर सकते हैं, अभी मुझे ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस जाए बिना नहीं रह सकता, तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो सबसे पहले क्या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकता हूं? क्या इस तरह से वर्कआउट हो सकता है कि मैं ऑफिस के पास रहूं? राइट। वो लग्जरी है, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, काफी सारी दिक्कतें आती हैं। अगर मेरा ऑफिस दूर है तो क्या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकता हूँ? क्या मैं चल के जा सकता हूँ? क्या मैं साइकिल पे जा सकता हूँ? राइट। अगर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि जहां मुझे नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने, अपना प्राइवेट व्हीकल ही लेके जाना है, तो क्या मैं उसमें फ्यूल एफिशिएंसी ला सकता हूँ? क्या मैं छोटी गाड़ी में जाऊंगा? क्या मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल जाऊंगा कि जो रिलेटिवली लेस हार्मफुल है? क्या मैं कारपूल करूंगा? ठीक है। अच्छा, मुझे मार्केट से सब्जियां लेनी है, चीजें लेनी है, तो हर बार बार जाने से अच्छा है क्या मैं एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज लिस्ट बना के एक ही बार में सब कुछ लेके आऊं? उससे मेरा टाइम भी बचेगा। अच्छा, पानी का इस्तेमाल अगर हम करें, पानी के एग्जांपल्स दे, तो कई लोगों को आदत होती है शावर के बारे में शावर में के अंदर नहाने में, और कई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो शावर में बहुत कंट्रोल में नहाता हूँ, ध्यान रखता हूँ। लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं होता है, आपको अंदाजा नहीं आता है कि कितना पानी आपने बर्बाद कर दिया है। तो क्या मैं बकेट में नहाऊं? अगर मैं बकेट में नहाता हूं तो पूरी बकेट के बजाय आधी बकेट इस्तेमाल करूं। आधी बकेट में नहाता हूं तो क्या मैं उससे और कम करूं? वाटर सेविंग नोजल लगाऊं घर पे। राइट। जब शेव ब्रश करता हूं तो टैप बंद करूं। बर्तन धोते हैं तो कॉन्शियसली पानी इस्तेमाल करें। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से मैं कम करूं? आजकल तो सबको फैशन हो गई है, घर में बहुत सारे एलईडी लाइट्स वगैरह लगाएंगे और बिना सोचे सब बटन चला कर देंगे। उससे अच्छा है कि क्या मैं एक ही लाइट में काम चला सकता हूँ? मैं जिस कोने में बैठा हूँ उसी लाइट का इस्तेमाल करूँ, ना ही अदर चीजों का। जब मैं खाना खाता हूँ तो क्या मैं मोर एंड मोर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की ओर जा सकता हूँ? क्या मैं डेयरी को मना करके वीगन की ओर जा सकता हूँ? क्या मैं गेहूं को मना करके मिलेट्स की ओर जा सकता हूँ? क्या मैं पैकेज फूड को कंप्लीटली मना कर दूं? जब मैं मार्केट में गेहूं चावल वगैरह लेने जाता हूं तो क्या मैं मेरी अपनी थैली लेके जा सकता हूं? दूसरा है वेस्ट अवॉइड करना। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में और हम में। राइट। हम बिना सोचे समझे वेस्ट कर देते हैं। जस्ट बिकॉज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं चीजें खरीद सकता हूँ, मैं वेस्ट करता हूँ। वो वेस्ट सिंपल हो कि जब हम रेस्टोरेंट में गए या किसी के घर पे गए तो पूरा ग्लास पानी के बजाय आधा ग्लास पानी पिया और आधा वेस्ट कर दिया। खाना जूठा छोड़ दिया हमने। जस्ट बिकॉज मैं खाना खरीद सकता हूँ मैं जूठा छोड़ देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने जूठा छोड़ दिया। राइट। लाइट पंखे जलते रहते हैं, स्पेशली जब हम ट्रैवल करते हैं। राइट। जैसे मेरे मेरे बिकॉज मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मुझे काफी बार ट्रैवल करना पड़ता है, होटल्स में रहना पड़ता है, और मैंने देखा है कि होटल्स लोगों की आदत होती है कि जैसे ही आप चेक इन करेंगे रूम, पूरे रूम्स के लाइट पंखे एसी सब चल रहा होगा, बाथरूम्स वगैरह से। राइट।
उसमें से कितने से, हम में से कितने लोग एफर्ट लेते हैं कि वो लाइट वगैरह हम बंद करें, राइट, जितना जरूर वो इस्तेमाल करें। हम नहीं करते, क्यों? क्योंकि मैंने तो पूरा भाड़ा दिया है होटल का, मैं तो पूरा वसूल करूंगा, राइट। इस तरह का बिहेवियर जो होता है, वेस्ट होता है। आज हमारे घर में बड़े बड़े प्रसंग होते हैं, शादी होती है, कितना खाना वेस्ट जाता है। क्या हम कॉन्शियसली उस चीज को अवॉइड करें? शादियों में जाके जस्ट बिकॉज 40 प्रकार के व्यंजन है, हम लोग सब कुछ खाएंगे, मेरे पेट में जगह हो ना हो, लेकिन मैं वो ठूस ठूस के भरूंगा। इस तरह का वेस्ट जो है हमें कम करना है। तो रिफ्यूज नहीं हुआ तो रिड्यूस कीजिए आप। अगर आप रिड्यूस करेंगे तो बाकी 25% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, रिड्यूस भी कर लिया, उसके बाद भी कुछ तो दिक्कतें रहेंगी, तो रीयूज कीजिए। काफी सारी चीजें होती हैं जो हम रीयूज कर सकते हैं। सिंपल है, एक ही कैरी बैग हम कई बार यूज कर सकते हैं। जब हम छोटे थे तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस था कि घर के बड़ों के कपड़े छोटे पहनेंगे। मेरे बड़े भाई के कपड़े मैंने पहने हैं और मेरे कपड़े मैंने किसी और को दिए हैं, छोटे लोगों को। मेरी किताबें कोई और यूज करेगा, मैं किसी और की किताबें यूज करूंगा। जरूरी नहीं कि हर बार मैं नई किताबें लूं, राइट। उससे पैसा भी बचता है, पर्यावरण भी बचता है। कई बार ऐसी चीजें होती है कि हमें कुछ चीज एक ही बार इस्तेमाल करनी होती है, जैसे शादी में गए, कुछ अच्छे हमें चीज करने हैं, तो नए कपड़े खरीदने के बजाय या नई चीजें खरीदने के बजाय क्या हम बोरो कर सकते हैं, क्या हम रेंट कर सकते हैं, क्या हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। कई बार कई चीजें हमारे काम की नहीं होती, हम लोग फेंक देते हैं। वो फेंकने के बजाय क्या हम किसी को डोनेट करें, राइट। कैन वी डोनेट इट टू पीपल? क्योंकि आज जो चीज शायद हमारे लिए इस्तेमाल की ना हो, या हमें लगता हो कि ये टूटा हुआ है, आज किसी के लिए वो बहुत मायने रखता हो, राइट। आज हमारे पास अगर घर में एक सिरामिक कप है, उसका हैंडल टूट गया, शायद वो हम उसको फेंक देंगे। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होंगे कि जिसके पास वो कप भी नहीं है, उसको तो वो भी बहुत मायने रखता है। अपसाइक्लिंग क्लोथ, फर्नीचर, कपड़े आपके पुराने हो गए, उसको नए में कन्वर्ट कर दीजिए। आज आजकल काफी सारे लोग हैं जो अपसाइक्लिंग करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। आई थिंक इसमें इंडियन लेडीज को दाद देनी चाहिए कि जब उनकी साड़ियां थोड़ी फट जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो उसको वो कन्वर्ट कर लेती हैं ड्रेसेस वगैरह में, राइट। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हमारी, ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। फर्नीचर टूट गया, उसको थोड़ा मोल्ड कर देना चाहिए, उसको रीयूज करना चाहिए। तो ये रीयूज करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारा आ रहा है रिसाइकल। आपने रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज कर दिया, फिर भी कुछ सारी चीजें हैं, तो आप उसको रिसाइकल कीजिए, राइट। उसको डंपिंग ग्राउंड पे मत फेंक दीजिए, कहीं ऐसे वैसे मत फेंक दीजिए। सबसे जरूरी है आप वेस्ट सेग्रीगेशन कीजिए, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, इलेक्ट्रिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट। क्योंकि रिसाइकलिंग करके इन सारी चीजों को वापस इस्तेमाल किया जा सकता है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्पेशली इंडिया में ये है कि हम लोग हमारा कचरा जो है उसको अलग नहीं करते, सभी कचरे को एक ही साथ मिक्स करते हैं। हाँ, हम लोग ब्लेम करते हैं कि ठीक है मैंने सेग्रीगेट कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट तो वो मिक्स कर दिया। अरे अपने से हो सकता है वो कीजिए, लोगों में जागृति फैलाइए। आप जान के हैरान होंगे कि 95% कचरा जो है वो रिसाइकल हो सकता है। अगर हम कचरे को अच्छी तरह से सेग्रीगेट करें तो 95% कचरा रिसाइकल हो सकता है। उसके वजह से हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा, हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा। तो रिसाइकल कीजिए। अच्छा, रिसाइकल भी हो गया, उसके बाद रेप्लेनिश कीजिए। अभी हम कुदरत, हमारी क्षमता नहीं है कि हम कुदरत को कुछ दे सके, लेकिन कुछ चीजें डेफिनेटली कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, रिन्यूएबल एनर्जीज का इस्तेमाल कीजिए। जितना हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे उतना जमीन में ज्यादा पानी जाएगा, उतना जो जमीन जो है उपजाऊ फलद्रुप रहेगी। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए ताकि ऑक्सीजन मिले, लैंड की क्वालिटी जो है वो अच्छी रहेगी। लास्ट आर मेरी तरफ से है रेज योर वॉइस। रेज योर वॉइस यानी हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है, राइट। हमें किसी को भला बुरा नहीं कहना है, हमें सिस्टमेटिक वे से करना है। जैसे आई थिंक एक मूवी में डायलॉग का था कि जब अगर प्यार से चीजें हो सकती हैं तो झगड़ा क्यों करना। अभी हम किस तरह से हमारी आवाज उठा सकते हैं। एक, डिमांड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। आप कहीं भी दुकान में जाएंगे, राइट, उनसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड कीजिए। अगर आप सब्जी लेने गए हैं तो भैया को बोलिए मुझे प्लास्टिक की थैली नहीं चाहिए। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं तो उनको बोलिए क्या आपके पास वीगन प्रोडक्ट्स हैं, राइट। उसके बारे में डिमांड कीजिए। जितना आप चीजें डिमांड करेंगे उतना लोग कॉन्शियस रहेंगे, उतना लोगों को लगेगा, राइट। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, पूछिए वहां पे आपका पास वीगन खाना है,
नहीं है वो रेस्टोरेंट से वॉकआउट कर दीजिए, राइट। उसको भी पता चलेगा कि अगर मैं वीगन खाना रखता तो आज मेरा बिजनेस बढ़ता था। अगर आप किसी स्टोर में गए, उसके पास कपड़े की थैली नहीं है, बिना शॉपिंग किए निकल जाइए, उसको भी पता चलेगा कि हाँ आज मेरा बिजनेस लॉस हुआ, अगर मैं कपड़े की थैली रखता तो मेरा बिजनेस बढ़ता था। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। गवर्नमेंट से डिमांड कीजिए, इजी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया अवेलेबल है, काफी सारे कम्युनिकेशन के माध्यम अवेलेबल है। आपके लोकल पॉलिटिशियंस है, बीएमसी ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको इको फ्रेंडली पॉलिसीज के बारे में डिमांड कीजिए। अगर आप कुछ गलत देखते हैं तो उसके बारे में कंप्लेंट कीजिए। इंटरनेट में आज काफी सारी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कंप्लेंट करने के लिए। हाँ, पॉसिबल है कि 90% ऑफ द कंप्लेंट्स आपकी शायद रिजॉल्व ना भी हो, लेकिन हिम्मत मत हारिए, आपकी कंप्लेंट्स बनाए रखिए। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, किसी को बुरा मत कहिए, बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए। आपके सुझाव दीजिए, लाइक माइंडेड लोगों में अपने सुझाव दीजिए, अपने घर में इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उसके बारे में लोगों को बताइए, राइट। कुछ साल पहले मैं भी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से दूर था, लेकिन रियलाइज हुआ कि ये आज की तारीख में ये नए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उसको पब्लिसाइज कीजिए, ना कि अपने आप को ईगो बूस्ट करने के लिए, बट आपको देख के किसी और को प्रेरणा मिलती है। जैसे मुझे कुछ लोगों से मिलकर प्रेरणा हुई, उसी तरह आप लोगों को बताइए। ये एक चीज ऐसी है, जैसे हमारे में कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, राइट। अगर जंगल में मोर नाचता है कोई फायदा नहीं है, उसकी उसकी सुंदरता कोई निहार नहीं सकता। उसी तरह अगर आपने अच्छा काम किया है तो अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए नहीं, लेकिन लोगों को इंस्पायर करने के लिए आप उसका पब्लिसाइज कीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। तो ये हमारे 6R हो गए, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रेप्लेनिश एंड रेज योर वॉइस। एंड आप में से कुछ लोगों ने और भी आर्स दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग इनटू दिस आर्स। सो लेट्स प्रण लेते हैं। अगर बाधा लेना चाहे तो बाधा ले सकते हैं कि लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू टुडे, राइट। अगर हमें ज्ञान है, उसका आचरण जितनी जल्दी हम करेंगे वो हमारे लिए अच्छा है, तो आज से ही करते हैं शुरू। एंड जरूरी नहीं है कि हमें परफेक्ट जिंदगी जीनी है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में वीगन हो जाएं, जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में जीरो वेस्ट हो जाए, जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बंद कर दो। छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल कीजिए, छोटे छोटे चीज कीजिए। अगर आप आज एसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसी से पंखे पे आइए, पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम समय के लिए इस्तेमाल कीजिए, फिर कम से कम आइए। तो इस तरह से आप छोटे छोटे बदलाव लाइए, राइट। उसके लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं, एक मैं आपको एक प्लेज बताऊंगा, वो प्लेज ले सकते हैं और आप हमारे से सोशल मीडिया से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मेरा ये डिस्कशन खत्म होगा, ये लिंक, ये मैं लिंक्स जो है वो चैट पे भी शेयर करूंगा आप लोगों से, तो ये आप कर सकते हैं। और एक ये हमारा छोटा और दूसरा महत्वपूर्ण है कि आप वॉलंटियर बन सकते हैं, राइट। वॉलंटियर बनने के लिए आपको घंटों से घंटों देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिन में 10 मिनट भी दे सकते हैं तो आप इस चीज का फैलावा करने के लिए मदद कर सकते हैं। किस तरह से आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं? अगर आप सोशल मीडिया में एक्सपर्ट है तो आप हमारे साथ जुड़िए और हमें सिखाइए, हमें बताइए कि किस तरह से हम इसे सोशल मीडिया में स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जानते हैं, वहां पे अच्छे आपके ताल्लुकात हैं, हेल्प कीजिए उनसे कनेक्ट करने के लिए, ताकि हम पॉलिसी में बदलाव ला सके। अगर आप किसी ग्रुप्स का हिस्सा हैं, राइट, आपके सोशल ग्रुप्स है, कम्युनिटीज हैं, स्कूल कॉलेजेस है, कॉर्पोरेट्स में है, तो इस तरह के सेशन, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस तरह के सेशन ऑर्गेनाइज करने में हमें हेल्प कीजिए। अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल है या तो आप किसी को जानते हैं कि जो हमें मदद कर सकता है, उसको आप हमसे जुड़वाइए। और कुछ नहीं तो अगर आप हमारे से व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वगैरह में जुड़े हैं और आपको हमारे टिप्स अच्छे लगते हैं तो 10 मिनट निकाल के वो टिप्स आप लोगों में स्प्रेड कीजिए। तो काफी तरह इजी तरह से आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये एक प्लेज है। आप सब लोगों से मेरी विनती है कि आप ये प्लेज पढ़िए और आज से ही प्रण लीजिए, आज से ही बाधा लीजिए, आज से ही निश्चय कीजिए कि मैं जो भी है छोटे से छोटे तरीके से भी इन चीजों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करूंगा। और जब हम इस तरह के फिजिकल सेमिनार करते हैं, तो वेबिनार है, जब अगर हम फिजिकल सेमिनार करते हैं
तो हम इस प्लेज की लोगों को कॉपीज देती है, जिसके पीछे हम लोग कुछ इजी सी टिप्स भी दिए हुए हैं ताकि जो हर रोज आपको इस बारे में रिमाइंड करे। सो ये मेरा मंतव्य था। इसी के साथ यहाँ मैं थोड़ा विश्राम लेता हूँ। अगर इस दौरान मेरे से कुछ भी ऐसा कहा गया हो कि जो जिन शासन की आज्ञा के विरुद्ध हो या किसी को इसमें कुछ मन दुभाव हुआ हो, तो मेरी तरफ से मिच्छामि दुक्कडम। संगीता जी, बैक टू यू। Thank you so much, Sagar ji. Last 45 minutes were so very fruitful. हमने इतना कुछ जाना, इतना कुछ पाया. So before we move to wrap up, I want to open it up for questions, observations, thoughts. Anyone who would like to say something, ask something, please raise your hand. We would then request you to unmute yourself and ask your question, and we can do that one by one. So those who would want to say something, please raise your hand. ठीक है, सागर जी, जब तक दूसरे लोग क्वेश्चन पूछे, मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहता है जब आप लोगों से बात करते हैं, तो जैसा आपने बताया कि अरे चीज प्रोड्यूस ही क्यों होती है करके, यदि ये इको फ्रेंडली नहीं है तो प्रोड्यूस ही क्यों होती है। दूसरा एक रहता है कि गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर देती, तो अभी उस पर कैसे रिएक्ट किया जाए। आई नो, आपने बहुत, I also believe consumer is the king. We should do whatever is within our means and our limits. But ये जो observation और reaction रहता है कि गवर्नमेंट उसे बैन क्यों नहीं कर देती, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? यस, एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट संगीता जी। ये सब चाहेंगे कि ये सब चीजें बैन हो, लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि गवर्नमेंट को भी काफी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, राइट। ताली दो हाथ से बजती है। किसी भी समाज में बदलाव लाना है तो उस देश की गवर्नमेंट और प्रजा दोनों को साथ मिलकर काम करना है। अगर हम बोलेंगे कि एक ही साइड काम करेगी और दूसरी नहीं करेगी तो वो नहीं होता है। जैसे हम लोग प्लास्टिक फ्री देश चाहते हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको समझ नहीं है और वो लोग समझते हैं कि प्लास्टिक उनको काफी कन्वीनियंस होता है, राइट। जैसे साग भाजी वाले, उसके लिए बहुत आसान है। अभी लेडीज लोग आते हैं सब्जी लेने, मेन जाते हैं ऑफिस से, थैली नहीं है तो वो सब्जी किस में लेके जाएंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी चाहिए, राइट। जैसे हर एक का अलग होता है, तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे गवर्नमेंट को इम्पोज बैन वो नहीं कर सकती है, क्योंकि वो न्यूक्लियर जैसा हार्मफुल नहीं है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि धूम्रपान, टोबैको भी है, गवर्नमेंट को भी पता है कि टोबैको बुरा है, राइट। उसके पैकेजिंग में गवर्नमेंट काफी डेंजरस पिक्चर्स भी लगाती है, लेकिन कई सारे लोग हैं कि जिसको वो जिंदगी में जरूरियात हो गई है। अच्छा, गवर्नमेंट को काफी सारी इन चीजों से रेवेन्यू भी आता है, गवर्नमेंट को देश चलाना है तो उनको रेवेन्यू फाइनेंसिस भी चाहिए, तो काफी सारी दिक्कतें होती है। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो बैलेंसिंग एक्ट करते रहती है कि एक तरफ वो 135 करोड़ लोगों में से काफी लोगों को सहूलियत भी देना चाहती है, बट वो मिनिमाइज भी करना चाहती है। अच्छा, दूसरा पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, वोट बैंक भी होता है जो भी उनको संभालना होता है। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल चीजों को उनमें ध्यान रख के करना होता है, और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर चीजें कंज्यूम करना बंद कर देगा तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली वो चीजें बंद कर देंगी, राइट। वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस नहीं होगी, गवर्नमेंट तक को उसमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए दोनों चीजों को बैलेंस करके गवर्नमेंट को साथ में चलना पड़ता है। हम जानते हैं कि हमारे घर में भी कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। हम एक फैमिली है, 5 लोग हैं, 5 लोगों की चॉइसेस अलग होती है और हमें थोड़ा कोऑपरेट करना होता है। तो सोचिए, गवर्नमेंट को 135 करोड़ लोगों का ध्यान रखना होता है, तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें प्रॉब्लम होती है। जितना हम सुधरेंगे उतना गवर्नमेंट को आसानी होगी। एब्सोल्युटली, आई एग्री। भरत भाई, बैंगलोर से आपने आपका हाथ रेज किया है, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड या नमस्ते सागर भैया, आपका सुन के बहुत इंस्पायर हो रहा है और बहुत अच्छा आइडिया से आपका। मुझे एक ऐड करना है कि जो जैसे आपने बताया, कंज्यूमर इज द किंग इन द मार्केट।
तो वैसे ही बोल सकते कि आप मतलब जो लोग ऐसे बोलते कि गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट बैन करना चाहिए, तो हम लोग बोले डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये लोग कंज्यूमर इफ ये स्टार्ट चेंजिंग themselves, then only the change will come automatically. That's what यस एब्सोल्युटली भरत भाई, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम बदलाव लाएंगे दुनिया में बदलाव yeah. आएगा, राइट। So गवर्नमेंट को हम प्रेशराइज भी कर सकते हैं पॉलिसीज चेंज करने के लिए। एंड 1-to-1 मेरे ख्याल से अवेयरनेस स्प्रेड करना भी बहुत आसान रहता है, मुझे लगता है 1-to-1. Yes. So even if it is in a small way, but we can reach out to more people in lesser time, I should say. That's Yes, completely agree. every moment, whenever you have spare time, you're waiting for the bus, you're waiting for something else, you're waiting in the shop, you can always spread this awareness. Yeah, each one of us should, whoever realize the value of sustainability, yeah, should do this. Yes. That's my suggestion. Yeah. धन्यवाद. थैंक यू भरत भाई. हाँ, चंद्रा जी, आपने आपका हाथ रेज किया है. कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड Hi, I'm from Jaipur. I love the way you told everything. You're going to share the link, so I'm definitely my part. What I'm going to do is, मेरी friend group and my family group, everybody, I'm going to tell them to join that group. Whatever bit they can do, they can do. My question was, मेरे को समाज में, मेरी society में and schools में भी अगर ये awareness बढ़ेगी, तो आपके जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं लाइव, आपने मेंशन किया था कि आप करवाइए. सो हाउ डू वी गेट दिस लाइव प्रोग्राम डन? यस चंद्रा जी, थैंक यू वेरी मच. ये लाइव प्रोग्राम्स के लिए, सो सी नॉर्मली आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, सो मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहता है. उस दौरान ये थोड़ी दिक्कतें होती है प्रोग्राम्स करने के लिए, लेकिन सैटरडे संडे जो है वो मैं इस काम के लिए ही डेडिकेट करता हूँ. सैटरडे संडे ये चीजें मेरे लिए प्रायोरिटी होती है, तो म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम पे हम कर सकते हैं. अच्छा, दूसरी एक चीज हम ये भी कर सकते हैं. डिटेल्स वुड बी अवेलेबल. Yes, my contact detail is available and I'll put it in the group as well. ठीक है, so मैं अभी ग्रुप में मैंने डाल दी है. एंड दूसरा एक चीज ये भी कर सकते हैं कि जैसे भरत भाई ने भी बताया कि जितने ज्यादा लोग अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे वो अच्छा होगा. एक चीज मैं ग्रुप को ऑफर कर सकता हूँ, संगीता जी एंड आप लोग इसे अगर चाहें तो आगे लेके जा सकते हैं, कि हम लोग ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम कर सकते हैं, राइट. अगर आप में से कुछ लोग चाहें और कुछ लोग करें कि चलिए मैं भी ये इस तरह के सेमिनार्स कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या करना चाहूंगी, तो हम लोग एक आधे दिन का सेशन कर सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग ये चीज तैयार करके लोगों को ट्रेन करें. जितने ज्यादा लोग तैयार होंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. और इसमें जरूरी कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, राइट. जरूरी नहीं कि मेरा तरीका सही है, आपका तरीका सही नहीं. इसमें जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत अच्छा वक्ता होना है, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको स्टेज फियर नहीं होना है. ये सब चीजें ओवरकम कर सकते हैं. तो अगर चाहे तो हम लोग 8-10 ग्रुप लोगों का ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम कर सकते हैं, और ये लोग जाके ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करें, और उस तरह से हम लोग स्लोली हमारा नेटवर्क बढ़ा सकते हैं. Yes, absolutely, सागर जी. So very good suggestion. और जैसा आपने बताया, I think हमें बहुत सारे लोग चाहिए. जैसे एक कड़िया जुड़ते जाएंगे, बहुत सारे लोग इस श्रृंखला में जुड़ते जाएंगे, अवेयरनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा. With this, I will request Neeta ji, can you please unmute yourself? Yes, thank you so much. Thank you, सागर जी. बहुत अच्छा लगा आपका सुन के. एंड मैं डेफिनेटली वॉलंटियर करती हूँ आपके मिशन के लिए. मैं भी एक क्लाइमेट रियलिटी लीडर हूँ. मगर जो मैं प्रॉब्लम फेस करती हूँ कि जो अगर आप देखें इस प्लेटफॉर्म में जो भी जुड़े हैं वो सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं, मगर आपके इस प्लेटफॉर्म में और मेरे इस प्लेटफॉर्म में कभी वो नहीं आते हैं जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. यू अंडरस्टैंड? सो हाउ डू वी रीच दोज पीपल? क्योंकि जो भी इंटरेस्टेड है वो ही इस प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं, वो ही नेचर क्लब में जुड़ते हैं, वो ही. मगर प्रॉब्लम तो आता है जो हम नहीं फेंकेंगे. हम सस्टेनेबिलिटी में बिलीव करते हैं, मगर जो नहीं बिलीव करते उनका माइंडसेट कब करना चाहिए? जब वो कॉलेज में हो, जब वो काम कर रहे हो,
या आपको लगता है कि टारगेट वो बच्चों से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो आदत जब तक नहीं डालेंगे वो कुछ नहीं होने वाला है. We cannot change adults' mindset. Yes, Neetaji, thank you very much, and a very valid and a practical question. I completely, understand the challenge that you're raising, and I've gone through myself in that journey. जहां तक मेरा मंतव्य है, let me start with the easier one. कहाँ से और किससे शुरुआत करनी चाहिए? ओके, उसका मेरा जवाब है आज से और सबसे शुरुआत करनी चाहिए. राइट, देयर इज नो बेटर टाइम देन टुडे, बिकॉज हम पास्ट में तो नहीं जा सकते हैं. राइट, सो आज से शुरुआत करनी चाहिए. अच्छा, किससे करनी चाहिए? बच्चे, बूढ़े, मैं बोलूंगा सबसे. राइट, लोग जनरली बोलते हैं कि आप बच्चों में अच्छी आदतें डालिए तो वो अच्छे बढ़ेंगे. राइट, लेकिन हम एक ये भूल जाते हैं कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं. अगर मैं मेरी बेटी को बोलूंगा कि आप प्लास्टिक की बोतल मत खरीदो, लेकिन मैं जाके प्लास्टिक की बोतल खरीदूंगा, तो मेरी बेटी क्या बोलेगी? अरे पापा तो ये कर रहे हैं तो मुझे क्यों मना कर रहे हैं? राइट, तो जैसे मैंने बोला कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. तो शुरुआत अपने से कीजिए और सबसे कीजिए. इसमें कोई रुकावट नहीं है. बड़े भी सीख सकते हैं, बूढ़े भी सीख सकते हैं, बच्चे भी सीख सकते हैं. सो घर में जितने लोग हैं सबसे शुरुआत कीजिए, किसी को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए. अच्छा, लोगों को कैसे पहुंचा जाए, जो आपका बहुत वैलिड एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन है. राइट, जस्ट थिंक ऑफ आवरसेल्फ. जैसे मैं मेरे बारे में बात करूंगा तो आज से 5 साल 7 साल पहले शायद मैं इतना कॉन्शियस नहीं था. कुछ लोगों के संपर्क में मैं आया, वहां से एक थोड़ी सी चिंगारी जगी, और फिर मुझे उसके बारे में इंटरेस्ट जगता गया, और फिर चीजें बढ़ती गई. जैसे जैसे मैं लोगों को देखते गया, मुझे और इंटरेस्ट बढ़ा. तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कोशिश करनी है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, क्या आप लेडीज किटी पार्टी में या तो ग्रुप्स में इस तरह के सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? राइट, जहां पे दो लोग शायद इंटरेस्टेड होंगे लेकिन 40 लोग नहीं होंगे. हमें इस चीज के बारे में पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है. एक चीज जहां पे मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, एंड अपॉलॉजीज इफ आई हर्ट एनीबॉडी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस चीज को काफी एज ए एक्टिविस्ट लेते हैं, और मुझे वो एक्टिविस्ट सबसे थोड़ा नफरत है. क्योंकि एक्टिविस्ट जो होता है वो एकदम स्ट्रांग होता है. वो बोला या माई वे या हाईवे. राइट, वो हमें नहीं करना है. जैसे कई लोगों से 1-2 बार मेरी बहस हुई है कि जो लोग बोलते हैं या तो आप वीगन हैं या तो आप मर जाइए. राइट, नहीं पॉसिबल है. राइट, सबसे नहीं होता है. आप लोगों को थोड़ा मौका दीजिए चेंज होने के लिए. ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आप परफेक्ट हैं तो लोग भी परफेक्ट होंगे. थोड़े फ्लेक्सिबल रहिए, लोगों में पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए, लोगों को आपके अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बताइए. राइट, अगर आप वीगन हैं तो किसी को पुश मत कीजिए वीगन के बारे में, लेकिन आपकी रेसिपीज जो है आपने खाया है वो शेयर कीजिए, और अच्छे अच्छे फोटोज उसके शेयर कीजिए कि देखिए मैंने कितना अच्छा खाना आज खाया और मुझे कितना अच्छा लगता है. अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप कहाँ नेचर में घूमने गए, जैसे मैं बॉम्बे रहता हूँ, मैं नेशनल पार्क कभी कभी जाता हूँ, मैं वहां की अच्छी अच्छी फोटोज पोस्ट करता हूँ. राइट, लोग वो देख के इंस्पायर होते हैं, अरे यार ये बम्बई है क्या, बम्बई में कहाँ पे मुझे बताइए, अरे अगली बार मुझे भी लेके जाओ. तो वो आप इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए. लोग तब जुड़ेंगे जब उनको उस चीजों में मजा आएगी. राइट, हम किसी भी चीज से कब जुड़ते हैं? जहां पे हमें आनंद आता है, जहां पे हमें अच्छा लगता है. तो इस चीज को आप आनंद बनाइए, इस चीज को आप कंफर्टेबल बनाइए, इस चीज को डिफिकल्ट मत बनाइए. अब आप डिफिकल्ट बनाएंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे. अगर आप इसको अच्छा बनाएंगे तो लोग इससे जुड़ना चाहेंगे. पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए. ट्रस्ट मी, एक से शुरुआत होके ये लोग बढ़ेंगे. आज इस कॉल पे जितने भी हम 35-40 लोग हैं, आई एम श्योर 10-15 साल पहले हमारा बिहेवियर अलग था, आज काफी अलग हुआ है. राइट, सो जितना हम चीजों के बारे में पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे, जितना हम अच्छा फायदे बताएंगे इस चीजों को. हम लोगों को बताएं प्लास्टिक थैली आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको सब्जी लेने में दिक्कत होगी. क्यों? आप लोगों को बताइए ना कि अगर आप कपड़े की थैली लेके जाते हैं तो आपकी थैली मजबूत है. आप सब्जी लेके जाएंगे तो वो थैली टूटेगी नहीं, आपकी सब्जियां बिखरेंगी नहीं. राइट, अगर आप घर से पानी लेके जाते हैं तो आप अच्छा प्योर पानी पिएंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे. अगर आप घर का खाना लेके जाएंगे आप तंदुरुस्त रहेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे. पॉजिटिव चीजें बताइए. सो दैट्स द वे टू क्रिएट इट. इज इट अ परफेक्ट वे? प्रोबेबली नॉट. इज इट चेंज द वर्ल्ड इन अ डे? प्रोबेबली नॉट. बट ये शुरुआत होगी. सॉरी फॉर दैट लॉन्ग आंसर,
No, wonderful. So I always say it's like giving the homeopathic dose. थोड़ा सा रोज Absolutely. देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, because homeopathic dose will take out the disease from the roots. Absolutely. आप ये यूज See, कर सकते हैं. एब्सोल्युटली सी कई बार अगर ऑपरेशंस की एलोपैथी की जरूरत होती है बट वो बहुत रेयर केस में, राइट. अगर आप होम्योपैथी लेते हैं, एज यू राइटली सेड, अगर आप नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं, बिल्कुल. राइट. आई एम अ रीसेंट एक्सपोज टू द नेचुरोपैथी थिंग्स एंड ट्राइंग टू सी दैट अगर आप नेचुरोपैथी इन्वॉल्व करते हैं, आपको होम्योपैथी भी नहीं चाहिए, एलोपैथी तो कभी नहीं चाहिए आपको. बिल्कुल. Thank you. Thank Thank you. you. थैंक Thank यू. you, Sagar ji. Wonderful and a constructive answer to a difficult question, I would say. Roma ji, आपने आपका हाथ रेज किया है. You may want to go next. जय जिनेंद्र एवरीवन. मैं इस ग्रुप से जुड़ी हूँ और मेरे को इसके आने के बाद मेरे को बहुत चेंजेस आए हैं मेरे में. लाइक दुबई में तो फुल ऑफ गार्बेज. आपने 2 मिर्ची ली, उसके लिए वो दे दिया, 2 नींबू लिया तो 1 बैग दे दिया. तो बड़े सुपरमार्केट में तो वो कुछ नहीं करते हैं, वी हैव टू टेक लाइक दैट ओनली. लेकिन मेरे जो नेबरहुड में जो छोटे सुपरमार्केट में वहां जाती हूँ तो मैं एक ही बैग में अलग अलग डे करा के अलग अलग स्टिकर लगा के मैं लेके आती हूँ. वो मुझे देखते ही कह देता, मैडम जी 1 बैग. तो मुझे अच्छा लगता है लाइक कि एटलीस्ट मैंने 10 वो जो 1 यूज बैग्स हैं मैंने बचा लिए. और वाटर बॉटल में भी है, जैसे अभी घर में छोटी पार्टी होती है तो आई हैव बॉट 1 कप्स जिसके अलग अलग कलर हैं. उसमें मैं ग्लास रख देती हूँ कि पानी पीने के लिए हर बार वो थ्रो नहीं करना पड़ता. और मेरे को अलग से छोटी बॉटल, यहाँ बहुत कल्चर है कि 5-6 डजन बॉटल्स लाके रख देते हैं, फिर पूरे दिन में पीते हैं. जब हम उठते हैं तो 60-70 छोटी बॉटल्स हो जाती हैं. सो व्हाट मैंने हाँ डिस्पोजेबल ग्लासेस अभी बंद नहीं किए, पर वो 6 वो मग में कलरफुल में मैं 1 डाल के रख देती हूँ. सब अपना कलर याद कर रखते हैं और उसी में पानी पीते हैं. सो मेरे को लगता है कि मैं ठीक कर रही हूँ कुछ. आई एम इम्प्रूविंग. और जैसे डिशेस में सर्व करते हैं तो हर बार नहीं होती है तो मैं अपनी प्लेट रख लेती हूँ. तो थोड़ा अवेयरनेस तो दूसरों में भी आया है मुझे देख देख के. और अभी ये कल्चर ये अभी हमारे माइंड में भी नहीं आया कि मैं बड़े सुपरमार्केट में गई और सब्जी लेके आई, बैग्स भूल गई. तो हम ट्रॉली कार तक लेके आते हैं और फिर उस बड़े बैग वहां से लाने की बजाय हम अपने जूट बैग में या किसी में डालते हैं. सो मेरे में तो बहुत चेंज आया है एंड आई हैप्पी. और मेरे को देख देख के मेरी फ्रेंड्स भी कुछ करने लग गए हैं. सो आई एम ग्रेटफुल टू दिस ग्रुप. थैंक यू. थैंक यू रोमा जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. एंड आई जस्ट पिक ऑन वन थिंग. आपने अच्छी बात कही वो प्लेट्स के बारे में. यू नो वी स्टार्टेड दैट. सो आइडियली वी शुडंट गो टू द रेस्टोरेंट्स फॉर ईटिंग, राइट. घर में खाना चाहिए, बट वी आर इन द सोशल एनिमल, तो कई बार ओकेजन्स होते हैं. आई थिंक पिछले 4-5 सालों से हमने एज अ प्रैक्टिस शुरू की है कि अगर रेयरली कभी गए, नॉर्मली रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो आपको स्टार्टर के लिए अलग डिश देंगे, सूप बोल्स अलग होंगे, चम्मच हर एक का अलग होगा, मेन कोर्स के लिए 2 प्लेट होगी, डेजर्ट के लिए अलग होगी, एक्सेट्रा. तो अभी हम सिर्फ एक ही प्लेट में खाना खाते हैं. शुरू में जो वहाँ के वेटर्स वगैरह थे वो काफी शॉक हो जाते थे, बट नाउ दे ऑल्सो रियलाइज इट एंड वी स्टार्टेड एंड स्लोली अभी घर में बच्चे भी वही करते हैं. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड हैबिट. थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट. एंड हमने सबकी ग्लासेस अलग रखी हैं, उसके हम जो कोस्टर हैं वो अलग अलग रखते हैं. और मैं पूरे दिन हम लोग अपनी ग्लास वो यूज करते हैं. एक बार हमने देखा कि एक ग्लास वॉश, जितनी बार पानी पीते हैं उतनी बार ग्लास वॉश करके रखते हैं तो कम से कम आधा बकेट पानी उसमें चला जाता है पूरे दिन की ग्लासेस धोने में. तो इट्स गुड. थोड़ा थोड़ा चेंज है, छोटा चेंज है मगर अच्छा चेंज है. यस, थैंक यू रोमा जी. Absolutely, Roma ji. Thank you for sharing your thoughts and thank you for joining our session regularly. सुमन जी, आप जाना चाहेंगे नेक्स्ट? हेलो. मैं रोमा जी की बात में एक चीज बोल रही हूँ. हमारे घर में भी वी हैव द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग आवर ओन वाटर बॉटल्स. सो उसमें बार बार कोई आदमी भर के लाके दे रहा है वो भी नहीं है. हम अपनी बॉटल रखते हैं, खुद भर लेते हैं उठ के, खत्म होता है जब. वेरी नाइस. एंड वी कैरी इट ऑल्सो व्हेन वी गो.
सुमन जी? Namaste ji. हाँ जी, yes, we can hear you. Actually, I want to add another R, regional. Means we have to buy regional products, regional items, or instead of buying, suppose if you want any tiles or anything, instead of going to Gujarat or where it is more available, we can buy regional products. Yes, vocal for local. Local for local is okay, but regional means your area, suppose in Hyderabad, if you are staying, you can buy from there only or in your place. Instead of buying from long distance, or you can save traveling cost, petrol, diesel, or that time you to save. Vocal for Yes. local is again another point of view. That is also okay, but this I am telling is another point of view. Thank You you, can add Suman. another regional. Yeah. Thank you. Yes, thank you, Suman ji, for sharing your thoughts. Purvi ji? प्रणाम, जय जिनेंद्र एंड थैंक यू सागर भाई। कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको हर बार सुनना मतलब बहुत अच्छा लगता है कि इसी प्लेटफॉर्म पे शायद मैं आपको अभी कितनी भी बार सुन रही हूँ, लेकिन एक होता है कि हम लोग भी लोगों को सिखाते, लेकिन खुद को भी मोटिवेट करना पड़ता है कभी कभी। और आपको सुनते तो मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं, छोटी छोटी चीज भी मतलब, और ये है ना कि अगर हम बदल गए तो दुनिया बदल ही जाती है। तो एक मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम लोगों को सिखाते ना, शुरू में हर कोई, जैसे आपने बोला, एक्टिविस्ट ही बोलते हैं कि, और शुरू में हम लोगों में भी ना एक वो जोश होता है, नहीं हम कुछ नया कर रहे हैं या अलग करें, तो हम भी थोड़ा स्ट्रांगली आते हैं सबके सामने। फिर धीरे धीरे हमें ही रियलाइज होता है कि नहीं छोड़ो यार, करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो ये सब चेंजेस लाने के लिए इट विल टेक टाइम, कि 10-12 साल के बाद शायद समझ में आता है कि चेंज हो रहा है, लेकिन अपने तरीके से नहीं, नेचर खुद हमें सपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं किसी वे से। और एक इम्पैक्ट जब आता है, तो जस्ट रिसेंटली वी हैव रक्षाबंधन प्रोग्राम, तो हर साल हम लोग करते हैं, होटल में ही करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फैमिली, लाइक वी हैव 50 पीपल गेट टुगेदर होता है। और अभी एक बहुत ही कॉमन चीज सबने मार्क की होगी कि टिश्यू पेपर्स दिए जाते हैं स्टार्टर के साथ। तो एक चीज मैंने देखा कि हर चीज को नहीं आप बदल सकते, हर किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन आपने जैसे बोला ना कि कुछ चीज को कंफर्ट अगर दे दी जाए तो वो बेटर ऑप्शन हो जाता है अपने आप। तो टिश्यू पेपर में बार बार आप वो टूथपिक से ले रहे हो स्टार्टर, और वो सब अनवीनो की टिश्यू पेपर वेस्ट चला जाता है, ये सब पर समझाने से बेटर है एक छोटा सा प्लेट उसको बोला था खुद के लिए, बाकी के लिए किसी के लिए नहीं बोला कि भाई मेरे को एक छोटा क्वार्टर प्लेट दे दे, सारे स्टार्टर्स उसमें ले लिए, उसको बोला एक छोटा सा फोक दे दे भाई, बार बार वो टूथपिक से नहीं होता है। देन एवरीवन सी कि ये ज्यादा कंफर्टेबल वे है सबके लिए। देन सबको बोला कि हाँ भाई सबको प्लेट्स में दे दो ना, बार बार घूमो भी मत किसी के पास। तो अपने आप वो चेंज होता है। और अगर कोई चीजों को, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर कंफर्टेबल वे से सबके सामने रख दिया जाए, या तो खुद ही ऐसे करो, शुरू में आता है कि हाँ ये क्या अलग है ना, आप तो अलग हो ना सबसे, तो देन से हाँ मैं अलग हूँ, क्योंकि फैशन में से शुरू होती है, तो ऐसे भी लेना पड़ता है पॉजिटिव, पर वो मजा भी आता है। और जब आपको देख के सिर्फ 2 लोग भी इंस्पायर होते हैं ना, 2 छोटे बच्चे भी अगर इंस्पायर हो गए कि ये इजी है, तो मुझे लगता है वो इम्पैक्ट बहुत लंबा हो जाता है। और आपको तो सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक्स पूर्वी जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि खुद वो चेंज लाओ। आई जस्ट शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज यू नो आई ट्रैवल मेनी प्लेसेस। सो जब मैं स्पेशली जब अब्रॉड जाते हैं 2-3 साल में एक बार ऑफिस काम वगैरह के लिए, so I'm the only one singled out who is a vegetarian and Jain. Okay, so शुरू में बहुत दिक्कतें होती थी। कुछ लोग कोशिश भी करते थे, अरे यार एक बार खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है, या तो देखते थे अरे यार नहीं मिल रहा है तो एडजस्ट कर ले। I said नहीं, I will stick like this, and you won't believe that has become an identity for me now, right? So लोग, because of that people look up to me and say that नहीं, this guy is a man of ethics, और उसके वजह से वो लोग रिस्पेक्ट ज्यादा देते हैं अभी। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं मतलब
थोड़ा फनी सीन भी है, लेकिन क्या होता है कि इमेज जब हो जाती है ना तो आपकी हर चीज को उसी तरह से देखा भी जाता है। Yes. जिसे बोला ना कि गुजराती स्पेशली जैन पीपल आर खाखरा एंड थेपला, तो अभी तो वो वर्ल्ड फेमस हो चुका है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा है कि हम कहीं पे भी जाते ना तो भूखे नहीं मरते, थेपला चल जाते हैं हमारे 1 हफ्ते तक। Yes. तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और इस बार भी ऐसे हुआ था कि गलती से कुमकुम की जगह पे केचप की डिब्बी चेंज हो गई, पता ही नहीं चला, और हम लोगों को भी नहीं पता चला कि हम कुमकुम की जगह पे वो टिक्का करने के लिए केचप का वो डिब्बी लेके गए थे। देन जब ओपन किया तो एवरीवन से ये अलग क्यों दिख रहा है, तो बोला नहीं नहीं हो सकता है आपका है ना, आपने कुछ घर पे बनाया होगा तो अलग होगा करके। तो देन वी से कि नहीं नहीं यार ये गलती से डिब्बी आ गई, लेकिन फिर भी वो तो एक चलो एक कॉमेडी से नहीं हो गया था, वहां पे इतना हंसे, लेकिन फिर भी एक अच्छा इम्पैक्ट आता है कि नहीं आपका है तो लोग नोटिस भी करते हैं कि Yes. कुछ तो अलग होगा, क्या अलग है चलो देखते हैं। और वो कहीं ना कहीं एक लोगों को भी अगर वो इंस्पायर कर जाता है तो वो वर्थ है। Yes. Yes. Thank you, Purvi ji. थैंक यू। Thank you, Purvi ji. Nilima ji, you've raised your hand. Yeah. Hi, this is like first time I am attending this webinar, and really this is a very thought provoking. And see, when you said demand करो, I just felt कि पूरा सारा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड चल रहा है या जो शॉपिंग का जो फैशन का जो ट्रेंड है वो डिमांड पे ही चल रहा है। तो जब हम डिमांड करना शुरू करेंगे कि हमें वीगन चाहिए या हमें कांच की बोतल चाहिए, वी डोंट वांट प्लास्टिक बॉटल्स, तभी चेंज आएगा। तो वो मुझे एक बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज कई बार मैं थोड़ा शाय करती थी कि अरे पूछूं कि नहीं पूछूं, ठीक है चल जाएगा, इट्स ओके। तो वो एक अभी मुझे लगता है कि हाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली आई एम फीलिंग फॉर दिस। एंड बाकी छोटे उसमें मैं कंटिन्यूसली आई एम चेंजिंग माई सेल्फ, और बहुत अच्छा भी लगता है कि व्हेन यू फील कि हाँ आप कुछ एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हो और आप अपने यू आर ग्रोइंग, यू आर नॉट स्टैग्नेटिंग, या आप ऐसा नहीं कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो कोई बड़े उसकी जरूरत नहीं है कि हम बहुत बड़े उसमें, बट मुझे लगता है अपने लेवल पे अगर हम करें तो बहुत अच्छा है। कि एवरी डे इफ आई टेल माय मेड कि थोड़ा पानी कम उस पे चलाओ, टैप को कम खोलो, इतना जरूरी नहीं है, और पोछे के लिए अगर ले रही तो टेक हाफ बकेट ओनली। तो दैट इज आई थिंक मोर देन इनफ। और रियली कई चीजें आज के उसमें मेरी बहुत एक तो ये डिमांड वाला भी लगा, और दूसरा ये कि हमें एक्टिविस्ट बनने की जरूरत नहीं है। दैट ऑल्सो स्टक टू मी कि हाँ कई बार मुझे गुस्सा भी आ जाता था कि व्हाई पीपल डू दिस, क्यों बैग नहीं ले जा सकते, क्यों ऐसे नहीं करते। बट अभी मुझे लगता है कि नहीं नहीं थोड़ा आपको ही अपना करना है, और पीपल विल सी एंड पीपल आर सीइंग। मतलब आई सी इन माय फैमिली ओनली पीपल आर चेंजिंग। माय हस्बैंड ऑल्सो, पहले वो फैन लाइट खुली रहती थी, अभी ये है कि नहीं जरूरत है तो नहीं ऑन करनी है। सो आई कैन सी ही इज ऑल्सो चेंजिंग। So this is what I wanted to share. Thank you so much for this organizing this webinar. Thank you. Nilima Thank ji. you, Nilima ji. Thank you for sharing your thoughts, Nilima ji. So, Samani ji, you have raised your hand. हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा संगीता जी, पहली बार मैंने ये ज्वाइन किया गूगल मीट, और आई रियली कंग्रेचुलेट फॉर दिस अप्लाइड जैनिज्म लेक्चर सीरीज। एंड मुझे लगा कि जैनिज्म सार्थक हो रहा है। जैसे 12 जो व्रत है अनुव्रत के, उसमें उपभोग परिमाण व्रत, इच्छा परिमाण व्रत और अनदंड विरमण व्रत, आज के इस लेक्चर से ये तीनों व्रत ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न वे में एक्सप्रेस हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आई ऑल्सो वर्क ऑन अप्लाइड जैनिज्म, ऑल द आर्टिकल्स एंड ऑल I write on applied Jain philosophy. One of my book, Applied Philosophy of Anekant, I have written, which was published from Jain Vishwabharati Institute in 2012. So I work basically all the articles and all get published on only applied Jainology, and I'm very much happy. And I pleased to listen to Sagar Jain, and I'm really happy that he is spreading Jain way of life in a modern way. Thank you. Thank you, Samani ji. हमारा सौभाग्य है कि आपने ज्वाइन किया, and look forward to your blessing.
या थैंक यू। अगर आप पीछे की जो आपके लेक्चर्स हुए हैं उनका हाँ। अगर हमें लिंक मिल जाए तो मेरे मेल में, तो आई विल बी हैप्पी, आई विल बी ग्रेटफुल। आई एम शेयरिंग माय नंबर। आप यदि मुझे एक बार कांटेक्ट Okay. करेंगे तो मैं आपको ओके ओके मैं चैट में आपको भेज रही हूँ मेरा नंबर। ओके ओके। Okay. Okay. So with this, if there are no more questions, if nobody wants to share their thoughts, then we will move towards concluding this session. सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक पूरा सेशन फ्रॉम द बिगनिंग जब आपने बताया कि क्या क्या मिथ्स हैं, लोग क्या सोचते हैं सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में, इट इज बोरिंग, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज इम्पॉसिबल टू, कि हम कैसे चेंज लाएं। We don't have to bring in a 360-degree turnaround. छोटे छोटे चेंज डे टू डे लाइफ में, एंड आपने जो गांधी जी का प्रिंसिपल बताया मुझे लगता है वो हमेशा ही वैलिड है, राइट? हम कुछ भी कहे पहले तो अपने आचरण में लाए, राइट? सो बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हमें कोई रेवोल्यूशन नहीं लाना है, लेट इट इवॉल्व, बट वी गॉट टू बी पर्सिस्टेंट। हमें खुद को वो डेली डे टू डे फॉलो करना है, और यदि हम करेंगे तो हमको देखकर बहुत सारे लोग करते रहेंगे। आपके 6 hours, I think it's important, right, to reinforce that on a day to day basis. हमें पता है एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो हमारी संस्कृति में वो सारी चीजें थी, कौन सी नहीं थी? फ्रॉम रिफ्यूज से लेके रिसाइकल तक सब कुछ था, सब कुछ वैसे ही हो रहा था। बट पिछले कुछ दशकों में ये सारी चीजें कहीं बीच में रह गई, एक्चुअली कहीं हम भूल गए इन सब चीजों को। बट वापस लाना इतना मुश्किल नहीं है। 20 साल पहले भी तो लोग जी रहे थे और अभी भी जी सकते हैं। बट यस, उसके लिए सबसे बड़ी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने बताया कि रेज योर वॉइस। हम डिमांड करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। जैन फूड का जो आपने एग्जांपल दिया, मैं भी जब भी लेक्चर्स लेती हूँ मैं देती हूँ करके, आई मीन सोचो दुनिया भर में जैन फूड कितनी पॉपुलेशन है, तो भारत का भी 1.5% हिस्सा है, बट हमें सब जगह मिलता है। ओके, क्यों? तो ये इतनी छोटी सी पॉपुलेशन, और उसमें भी एक्चुअली देखा जाए ना कि 0.5% में से जो लोग जो जैन फूड डिमांड करते हैं वो एक और भी बहुत कम फ्रैक्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉर्मल हिंदू वेजिटेरियन Yes. फूड खा लेते हैं फ्लाइट्स में, तो फ्लाइट्स में बाहर सब जगह खा लेते हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन, बट वो एक छोटा सा फ्रैक्शन इतना बड़ा चेंज सारे वर्ल्ड ग्लोबली ला सकता है, वेदर इट इज इंटरनेशनल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल रेस्टोरेंट। तो हम भी चाहे तो हम ला सकते हैं सारे चेंज, बट वी हैव टू डिमांड। हम ऐसे ही Yes. बैठे रहे, सोचते रहे, कुछ करे नहीं तो नहीं होगा, बस कुछ करना है। आई मीन लाइक जैसे कि एक अभी जैसे ये सेशन भी, इट्स सो इजी, राइट? जस्ट ज्वाइनिंग फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ योर होम, बट दिस 1.5 hour interaction inspires us, gives us the ability to interact with a lot of new people, get their ideas. I mean छोटे छोटे आइडियाज, जैसे रोमा जी के आइडियाज, राइट? जैसे कि घर पे सबके लिए अलग अलग ग्लासेस रखे जाए, ठीक है? यदि आपको डिस्पोजेबल रखने हैं, बट एटलीस्ट आप मल्टीपल डिस्पोजेबल तो अवॉइड कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें यदि हम चर्चा करेंगे तो होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम जो भी करते हैं देखा देखी करते हैं। दुनिया में कोई भी ये सारी नॉलेज तो लेके आया नहीं है, हमने ऑब्जर्व किया है, बचपन से लेके हम आज तक ऑब्जर्व करते आए हैं। तो वैसे सारी चीजें हम सीखी है, तो अभी हम ये चीजें देखेंगे, इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, तो चेंज डेफिनेटली पॉसिबल है। आई डेफिनेटली शेयर योर एंथुसियाज्म, पॉजिटिविटी। डिफिकल्टीज बहुत सारी रहेगी, बट यदि हम पॉजिटिव हैं तो बहुत सारी चीजें मुमकिन है। So thank you so much for being with us, inspiring us, sharing your thoughts, sharing a lot of practical tips. Thank you so much audience. यदि आप हैं तो हम हैं, सेशन हम सबके लिए हैं। शायद मैं और सागर जी हम दोनों ऐसी चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो हम सबको भी आगे बढ़ने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। So please keep joining, please keep inspiring us, please keep sharing your thoughts, and we will be back again next month with another seminar on first Sunday of the month at 11 a.m. Thank you. Thank Thank you you. everybody. Jai Jinendra and Michhami Dukram. Sorry, 1 second. एक संगीता जी ने रेज किया हुआ है, तो I don't want to
Yeah, let her not share her thoughts. संगीता जी please, sorry, आपने रेज किया था तब तक मैंने बोलना चालू कर दिया था. If you want to Yeah, I've just wanted to ask that nowadays children like go to gym and they want their like protein content, and they go for the like paneer and all that. So what is the effect of this means carbon footprints के इसमें टर्म्स में मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कैसे कितना कार्बन फुटप्रिंट हम लोग को ये डेयरी प्रोडक्ट्स से हो रहा है. Yes. So thanks, Sangeeta ji, for the question. I may not have an exact answer to that because it depends on the multiple things. But broadly, मैं आपको बता सकता हूँ कि जितने भी products हम use करते हैं, which is from an animal source, right? So a lot of people who go to the gym and they are being then advised saying that आप non-veg खाना शुरू कीजिए या तो आप dairy consume करना कीजिए, etc. So all these, one is from an animal cruelty perspective also is bad. The second thing, from an environment perspective, also these are bad things, right? Exact carbon footprint तो मैं बता नहीं पाऊंगा, but I'm sure we can Google it and get an answer to that. लोगों का ऑप्शन होता है कि उसका alternatives क्या है. Plant based diet पे काफी सारे options available हैं इसमें, and in fact I think most of the people would know, but world के जो भी best athletes हैं, like sports people हैं, now they are the one who need the proteins the most, because they are very intensely physically active. So काफी सारे वर्ल्ड के पॉपुलर एथलीट्स जो हैं वो लोग वीगन हैं, right? Including अगर इंडिया में एग्जांपल देखा जाए तो I've read that even a star cricketer like Virat Kohli, a lot of NBF players, a lot of rugby players are vegan. So अगर उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स वीगन प्लांट बेस्ड डाइट से मीट हो सकती है तो हमारी सबकी तो इजीली हो सकती है. Okay. Yeah, that's. Yeah, ma'am, I have just shared to add to what Sagar said. So there is a brand, Cosmix brand, which is very good for vegan products. Okay. I personally use that for vegan protein. So that's something that definitely you can look at. In addition to it, even you starting to use millets and all, like ragi and all is ragi bajra is one kind of millet, but there is the really good millets are those kodus, barnyard, little millet, foxtail millet, aise 5-6 millets or hai rajgira, all of that. So even those are really packed with proteins and they are gluten free, right? So when we are eating wheat and rice, a lot of our, there's a lot of gluten getting added to our diet. And as a result of that, a lot of lifestyle diseases eventually, as we turn into 60s and 70s, not when we are young, do creep in, right? So I think even millets are a very powerful source of proteins and good vitamins, minerals as well. So, those are some of the other lifestyle changes that we can incorporate. Yeah, but the gym people say that only counted proteins only they consider as proteins. This much grams you must intake and. Correct, but plant-based protein kar sakte hai. At least what I've told my son also is really heavy into gymming, and he actually has almost a 6-pack even in the US. So I've made him now change 50% plant-based, 50% whey. So he still takes whey protein also, but at least now reduce the amount by 50% and 50% he's using plant-based. So that is what I'm also trying. It's a journey, of course. Yes, thanks, Dimple ji and Sagar ji. And one more thing I wanted to ask, that you had shown the How Bad Banana, that book. Is it available online, or we have, from where do we buy? It is available in the most of the bookstores. The small local bookstores won't have it, but places like Crosswords or Amazon, etc., you will easily find it. Oh, okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. So with this, we will conclude today's session. Thank you everyone for your time, and hope to see you all next month. Thank you. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Thank you, Jai Jinendra.